Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Uh, I welcome you all to आत्मंथन. आत्मंथन एक छोटा सा गुरुकुल है जिसमें बहुत Good सारे evening, sir. गुड इवनिंग जिसमें बहुत सारे वैल्यूबल प्रोग्राम्स जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, वो मैं और मेरे अलावा बहुत सारे मेंटर्स कंडक्ट करते हैं। और ये माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग इसको समझ सकें, जो जिंदगी में घट रहा है वो क्यों घट रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कितना कंट्रोल है अपने जीवन पर, क्या मेरे हाथ में है और क्या मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ फंस रहा हूँ, क्यों इरिटेट होता हूँ या क्यों सुलझ लेता हूँ, क्यों मैनेज कर लेता हूँ। जो भी है, माइंड से संबंधित जितनी भी क्रिया और प्रतिक्रियाएं हैं, उनका क्या, क्यों और कैसे, ये जानना हमारा इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। क्या अब शक्ति है, कुछ है अंदर, कुछ पावर है, और अगर है तो पूरा संसार क्या कहता है, और अगर पूरा संसार इस माइंड के गुणगान कर रहा है, कह रहा है यार गजब पावरफुल माइंड है, शक्तिशाली, तो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा। लाइफ तो ऐसा लगता है जैसे बस चल रही है जिंदगी, दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं। जैसे सिचुएशंस और परिस्थिति आती है, उनको बस किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो शक्ति का अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं कि हम पे कुछ खास है। और इस जो खास है उसे जानना हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो आत्ममंथन इस संस्था का नाम है। एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग कुछ इंटरनेट इश्यूज थे तो ठीक से सुन नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे। तो आई होप अब मुझे देख भी पा रहे होंगे और आप सुन पा रहे होंगे। स्मिता, आप सुन पा रही हैं मुझे? Okay, thank you so much. Otherwise, I am prepared with many things with me, my headphones, internet double dual connections, कि अब की बार तो मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू निधि। तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो देख रहे हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे माइंड के साथ ही, ठीक है। Atmanthan, health, happiness, harmony, peace. Atmanthan is the socio-spiritual initiative by Design Gurukul. Atmanthan means the journey of self. Atmanthan is the art of balancing and managing our thoughts and emotions. Objective. Through this small effort, we are initiating change in every individual so that they will bring a revolutionary change in the society for the betterment of mankind. We are offering various programs: Power of Mind, Advanced Mind Training, Awakening Wisdom, Power of God is Within, Power of Positive Thinking, and Power of Intellect and Decision Making. We are also conducting trainings like Girls Forum, Kids Training Session, and special training programs for pregnant women. Atmanthan also organizes special nature retreats. Dr. R.M. Mehra, PhD and DSc, is our mentor, a guru who is providing wisdom to thousands of people. He is a gem of a person who believes that whatever you practice, you can bring perfection in it. So practice learning, awareness, unconditional giving, love, and compassion.
passion. Dr. Gaurav Malik represents Atmanthan Design Gurukul in Canada. He is spreading awareness and putting his efforts in bringing positivity in the lives of people. Other mentors of Design Gurukul strengthening the foundation of Atmanthan. Nature Retreat is all about knowing self and attain a high level of awareness in the lab of nature. It is a complete experiential journey. Meditation helps in transcending mind and unites human consciousness with divine consciousness. Home-based Ayurvedic cooking. As per Ayurvedic philosophy, food is medicine and medicine is food. Sound meditation. Sound and music adds peace, calmness, tranquility, and bliss. Yoga. Yoga is the artwork of awareness on the canvas of body, mind, and soul. Nature walk. Nature walk. Meditative walk is complete mindfulness. Nature heals everything with its powerful energies. Yog Nidra. Yog Nidra revitalize the body and mind. Pranayam. Pranayam. Activates prana in body and uplifts good health. Fun activities. Fun activities refreshes and adds joy. Maitri Milan. Maitri Milan, appreciating someone, make others feel good about what they do. It's a key to any relationship. Group meditation. Group meditation enables collective consciousness to transcend. Enjoying the retreat.
have transformed lives of many people by adding bliss, wisdom, and contentment to their lives. ओके जी, अब जर्नी को शुरू करते हैं और आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करें सो दैट हम सेशन को आगे बढ़ा सकें। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के एक बार वीडियोस ऑन हो जाएं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। एक्सक्यूज मी, यस, मैंने 1 मिनट के लिए वीडियो बंद किया। आई एम ट्राइंग 1 पर्सन टू, आई एम हेल्पिंग हर टू ज्वाइन द जूम मीटिंग। शी डजंट नो हाउ टू ज्वाइन। ओके, इसलिए बंद कर रखा है, ठीक है। Okay, so I request other people as well to open their videos so that I can see everyone, और बिल्कुल क्लास वाला फील आना चाहिए। अभी तक एनर्जी आ नहीं रही है और ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसकी चर्चा कर रहे हैं, दिखता नहीं है, नजर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अंदर है, लेकिन सारा का सारा खेल जिंदगी में यही रच रहा है। पूरी बॉडी को गवर्न करने वाला और चलाने वाला माइंड। हम जानते हैं ना, ये बात आगे भी आएगी कि मैक्सिमम डिजीजेस साइकोसोमैटिक हैं। ज्यादातर डिजीज पहले मेंटल प्लेन पर आएंगी और उसके बाद वो फिजिकल प्लेन पर जाएंगी। तो इसका ये मतलब होता है कि जो मास्टर है, जो सब कुछ चला रहा है, वो यहां है। और मजेदार बात एक ये है कि जो मास्टर है वो हमारे अंदर बैठा है पर हमें मालूम ही नहीं है। बस ऐसा लग रहा है जैसे एक जिंदगी आपाधापी में चलती रहती है। पैदा हुए, जो परिस्थिति आई उनको मैनेज करते गए, फिर आगे आगे परिस्थिति बनी, फिर प्रोफेशन भी बना, फिर कमाने भी लगे। मतलब सब कुछ चल रहा है, कैसे चल रहा है नहीं पता। कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग अपनी आदतों के शिकार हैं। भाई वो ऐसे हैं तो ऐसा कर देते हैं और बस सब कुछ हो रहा है, पर ऐसा समझ नहीं आ रहा कि कंट्रोल कहाँ छुपा बैठा है। अगर जिंदगी में कंट्रोल चाहिए तो वो कंट्रोल कहाँ से लाऊं? तो जिसकी बात अब हम कर रहे हैं वो है माइंड। माइंड द मास्टर, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इस पे चर्चा शुरू करी थी और बात करनी शुरू करी थी कि जिस स्टेट में अभी हम हैं उस स्टेट को आमतौर पर हम लोग बोलते हैं वेकिंग स्टेट, क्योंकि हम सजग स्थिति में अभी हम क्या उठे हुए हैं। देसी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ जी, आप तो जगे हुए हो भी, आप तो उठे हुए हो भी। तो अभी ये कौन सी स्थिति है जिसमें आप सजग हो, ठीक है। और दूसरी वर्ड क्या यूज हो सकता है? आप कॉन्शियस स्टेट में हो, जिसे हिंदी में कहते हैं इस समय आप चेतन अवस्था में हो। चेतन मतलब सारे लोग अभी जगे हुए हैं, आंखें नाक कान सब खुले हुए हैं। तो अभी हमारी स्थिति कौन सी है? चेतन अवस्था है। चेतन अवस्था को टेक्निकली कहते हैं कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। एक फास्ट रिकैप दे रहा हूं सो दैट अब की बार आई होप बिल्कुल क्लैरिटी से सुन पा रहे होंगे। अगर अभी भी कुछ सुनने में इश्यूज हैं तो मैं हेडफोन लगा लेता हूं। आई होप बिल्कुल क्लैरिटी से सुन पा रहे हैं। शुड आई कंटिन्यू एज इट इज? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो हम अपनी पहले अवस्थाओं को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये मास्टर काम कैसे करता है, ये किस तरह से बना है। और अगर हमें इसके काम करने का तरीका समझ आ गया तो हमें यह समझ आ जाएगा कि जिंदगी में छोटे छोटे परिवर्तन से बड़े बड़े परिवर्तन कैसे आएंगे।
छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े बदलाव कैसे आएंगे ये समझ आना शुरू हो जाएगा। केवल इसको जानने मात्र से, इसको समझना भी 50% प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ज्यादातर लोग माइंड के स्ट्रक्चर को जाने बिना ही श्वास छोड़ देते हैं, शरीर त्याग देते हैं, और ये जो परमात्मा की बड़ी बेहतरीन रचना है जिसको मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, माइंड, ये बहुत इजीली समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अभी हम जिस अवस्था में है वो है जगे हुए हैं, कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है। सजग भी बोल सकते हैं, जगे हुए बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली बोलेंगे आई एम इन अ कॉन्शियस स्टेट। ठीक है, और चेतन अवस्था में हूं। ठीक है, और इस अवस्था की क्या खासियत है कि मेरी पांचों इंद्रियां सजग होती हैं। मैं इस बाहरी संसार को 5 इंद्रियों से समझता हूं। आई होप ये सब बात समझ पा रहे होंगे। ये बिल्कुल बेसिक बात है कि मैं इस संसार को या तो सुन सकता हूं, कि आवाजों से अंदाजा लगा सकता हूं कि अच्छा ये तो रोड आसपास में है, व्हीकल चल रहे हैं, या मैं देख सकता हूं कि अरे मैं तो दिल्ली में हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बाहर झांकूंगा तो मुझे व्हीकल दिख जाएंगे, है ना, गाड़ियां आती जाती दिख जाएंगी। या मैं स्मेल से समझ सकता हूँ कि जरूर कोई बगीचा आसपास में, फूलों की खुशबू आ रही है। या मैं खा के कुछ चीजों को जान सकता हूँ, या मैं छू के जान सकता हूँ। तो मेरे पास कान, आंख, नाक, जबान और स्किन, चमड़ी, ये 5 तरीके हैं बाहरी संसार को जानने के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्री, और इंग्लिश में बोलते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना। तो हमारा इस स्टेट में, कॉन्शियस स्टेट में, हम बाहरी जगत से जुड़े होते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े हुए होते हैं। और हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से किसके थ्रू जुड़े होते हैं? 5 रस्तों के थ्रू, 5 मार्गों के थ्रू, और इन 5 मार्गों के थ्रू दबादब इंफॉर्मेशन ला रहे होते हैं। अब जिस दिन सोचो कि बरखा घूमने गई अपनी फैमिली के साथ, तो उसी दिन बरखा ने एक दिन में 3 पिकनिक स्पॉट देखे, तो कितनी चीजें देखी, वो सब देखी, कुछ सुनी, कहीं पे कुछ खाया, ठीक है, कोई फूलों को टच किया। तो बराबर सारी सेंसेस का इस्तेमाल वो कर रही हैं, और सभी सेंसेस से क्या इकट्ठा कर रही हैं? इंफॉर्मेशन। जब ये अपने घर वापस आएंगी तो घर में सब पूछेंगे हाँ जी कैसा रहा दिन, तो बरखा क्या करेंगी? वो सारी इंफॉर्मेशन को वापस बताएंगी कि अरे आप लोगों ने लोधी गार्डन देखा है, गजब गार्डन है भाई, दिल्ली में साउथ दिल्ली इतना बड़ा, चलते चलते हम थक गए, हम वहां घूम गए, ये हुआ वो हुआ। जो इन्होंने लिया था, इकट्ठा किया था, वो अब वापस दे रही हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं इस अवस्था में? वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वी कीप कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आईज, थ्रू नोज, थ्रू ईयर्स, स्किन और टंग। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा निरंतर हम क्या करते हैं? फैक्ट्स 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 इकट्ठे करते हैं। इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? इकट्ठा करते रहते हैं, और जो गैदर करते हैं उसे कहीं सर्टनली डाल देते होंगे, क्योंकि इकट्ठा की तो कहाँ गई, यानी कहीं किसी बैग में इकट्ठी हो रही है ना। तो अभी कॉन्शियस स्टेट में हम केवल ले रहे हैं, बाकी हमें नहीं पता क्या होता है, राइट। हम लोग देख रहे हैं, अच्छा, पर एक बात सोचिए कि जो आपने देखा, आप आंखें बंद करेंगे, आप दोबारा देख सकते हैं। आप किसी सपोज स्मिता छतरपुर मंदिर जाती हैं और छतरपुर मंदिर में दर्शन करती हैं, तो अगर ये चाहें तो शाम को आने के बाद आंखें बंद करें तो ये पूरी छवि को देख सकती हैं दोबारा, इनको वो वापस दिख सकता है। इसका मतलब वो जो इन्होंने देखा था वो कहीं सेव हो गया, वो जो इंफॉर्मेशन ली थी वो कहीं इकट्ठा हो गई। तो आप जो इंफॉर्मेशन ला रहे हो उसे इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। अब सोचिए कि आपका जब से जन्म हुआ है तब से अब तक की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा है। तो अगर अगर अंशिका को साइंस पसंद थी, तो जितनी साइंस में चीजें उन्होंने पढ़ी थी और जितनी चीजें अनुभवी तरीके से पढ़ी थी, इन्हें सब याद होंगी। और जैसे सपोज इन्हों संस्कृत इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, या मैथ्स में नंबर बड़े कम आते थे, बस ऐसे ही 40-50 में पास हो जाती थी, तो मैथ्स की चैप्टर भी याद नहीं होंगे। कि अपनी फ्रेंड से बोले यार हमने अलजेब्रा पढ़ा था क्या, याद नहीं आ रहा, ज्योमेट्री तो थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। तो जो चीज आपको पसंद थी वो आपको सारी याद होगी, जो आपको खास पसंद नहीं थी वो उड़ी उड़ी सी होगी। इंफॉर्मेशन तो आप सब इकट्ठी कर रहे हो, तो इन पे हम आगे बात करेंगे। तो इस अवस्था में, सजग स्थिति में, चेतन अवस्था में, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, अभी वी आर इन, राइट नाउ वी आर इन अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं? 5 सेंसेस के थ्रू, 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू केवल बाहरी संसार से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं।
ठीक है, और इंफॉर्मेशन को लेते रहते हैं। तो अभी हम कॉन्शियस स्टेट में हैं। फिर जब हम रात को सो जाते हैं तब दो अलग स्थितियां आती हैं हमारे साथ। एक होती है स्वप्न की स्थिति, जिसको जो कि ड्रीम स्टेट होती है ना, और एक होती है डीप स्लीप स्टेट, एकदम गहरी निद्रा की स्थिति। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहां से उठती हैं कि इसको तो आप जानते हो स्थिति को, क्योंकि इस स्थिति के अंदर आप अपनी इंद्रियों से बाहर के संसार को देख और समझ रहे हो, आप जानते हो। अगर मैं आदित्य से सवाल पूछता हूँ, आदित्य आप कौन से शहर में रहते हो, तो आदित्य क्या जवाब दोगे? अभी आप कौन से शहर में रहते हो? सर आपकी आवाज मेरे पास रुक रुक के आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक। सर मैं अभी तिहाड़ में रहता हूँ, तिहाड़ में। आदित्य अभी बेटर है साउंड? आदित्य अभी बेटर है मेरी आवाज? अब आप बेटर सुन पा रहे हो? आदित्य आप मेरी आवाज बेटर सुन पा रहे हो? हाँ जी सर। थैंक यू डियर। वैसे ना डियर, आवाज के आने और जाने में दो लोगों के इंटरनेट का रोल है। अगर मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही तो मेरे इंटरनेट पे प्रॉब्लम है, और आपको नहीं आ रही और सबको आ रही है तो आपके इंटरनेट में इशू हो सकता है ना। और वैसे भी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है, तो ऐसा हो सकता है एक आध वर्ड चला जाए, तो आप वो फिल इन द ब्लैंक की तरह पकड़ लेना खुद ही, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप जैसे अगर दिल्ली रहते हो तो आप बता सकते हो कि आप दिल्ली में हो? हाँ, क्योंकि आप अवेयर हो। तो इस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में अभी हम हैं, इसमें हम बाहरी संसार के बारे में अवेयर हैं। यानी कि एक तो कि हम दिल्ली में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, पुल बन रहा है, तो बाहर जो भी हो रहा है उसके बारे में हम केवल इस स्टेट में अवेयर हैं, नंबर 1। दूसरा, इस स्टेट में हम बॉडी कॉन्शियसनेस में भी रहते हैं। शरीर में क्या हो रहा है, कहीं दर्द है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, इस स्टेट में शरीर की भी पूरी आपको खबर होती है, जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस और टाइम कॉन्शियसनेस। अभी हम किस स्थिति में है आदित्य, बता सकते हो अभी हम कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में? यस सर, हम कॉन्शियस स्टेट माइंड में हैं सर। गॉड ब्लेस यू डियर। अभी हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में, जिसे हम कहते हैं चेतन अवस्था, है ना, सजग स्थिति, अवेयर हो। आपके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फटाफट जवाब देते जाओगे, है ना। जैसे मैं पूछूंगा कि आप कौन से शहर में रहते हो, तो आप कहोगे दिल्ली। मैं कहूंगा अच्छा आदित्य अभी कौन सा साल चल रहा है बताइए? सर अभी 2020 चल रहा है। 2020 चल रहा है। और दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ा फ्लाईओवर बना है, आपको कोई आइडिया है, या कोई जना बता सकता है? बहुत बड़ा फ्लाईओवर है जी। एनीवन हु हैज एन आइडिया? माफ कीजिएगा, नेटवर्क इशू है थोड़ा, आवाज नहीं आ रही मेरे को क्लियर। कोई बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे अगर मुझे गुजरात की कोई खास खबर लेनी है तो मैं शीतल को पूछ सकता हूँ, शीतल कोई एक फास्ट न्यूज बताइए गुजरात में भी हाल फिलहाल हुई हो तो। सर 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई। ठीक है। मैं भी और भी लोग ढूंढ रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट से कौन है। तो फिलहाल जो भी बाहरी परिवर्तन है वो मुझे इस स्टेट में, कॉन्शियस स्टेट में पता है। कौन मेल है, फीमेल है, क्या उम्र है, कहाँ रह रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है। तो शरीर की खबर, समय की खबर और बाहरी संसार की खबर, ये तीनों खबरें अभी मुझे हैं। और सपोज मैंने ये बात शायद पहले भी बोली थी, फिर बोलता हूँ कि सपोज शीतल के कंधे में बड़ा दर्द है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, बड़ा बड़ा हाई हाई चल रहा है, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा भैया ये तो बहुत हाई हाई कर रही, इनको एक दवाई दे दी। दवाई जो है वो सेडेटिव है, सेडेटिव लेते ये सो गई। अब जैसी सोई तो इनके बच्चे देख के कह रहे हैं कि मम्मी कि अगर दर्द था तो लेटे लेटे भी हाय हाय करना चाहिए, तो ये तो बड़े चैन से सो रही है। इनके दर्द था या नहीं था? दर्द तो था, और सोते हुए कुछ नहीं कर रही। लोग जो इतने पेन में भी होते हैं, जब कॉन्शियस से उनका ध्यान कहीं और जाता है
तो वो शरीर के बारे में, मतलब शरीर की कॉन्शियसनेस ड्रिफ्ट कैसे हो रही है। बड़ी मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप नींद में जाओगे, यानी कि तभी मैंने बात बोली ना कि दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां जो ऐसी होती हैं जो सेडेटिव होती हैं, वो आपको नींद में ले जाती हैं, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए समय चाहिए और हम वो कर नहीं पा रहे, हम पेन बियर नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही हमारा ध्यान इस कॉन्शियस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाएगा, अपने आप बॉडी कॉन्शियसनेस से ध्यान हट जाएगा। तो जैसे ही रात को मैं सोने जाता हूं तो मेरा ध्यान चेतन अवस्था से किस में जाता है, अवचेतन में। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो माई माइंड गोज फ्रॉम कॉन्शियस स्टेट टू द सबकॉन्शियस स्टेट, यानी जैसे ही मेरा मन चेतन से अवचेतन में जाएगा, शरीर के बारे में कोई अनुभव नहीं रहेगा। यानी कि जो शीतल कह रही थी हाय, अरे अभी चैन से सो रही है, सब देख रहे, बल्कि खराटे मार रही है वो, सब कह रहे भाई जब तुम्हारे कंधे में दर्द और हाय हाय कर रहे तो रात भर हाय हाय करो, दर्द मतलब दर्द, पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब सुबह घर वालों ने कहा कि सच बताओ तुमको दर्द था या नहीं था। वो कह रही है मेरे को, मैं झूठ बोल रही हूँ, दर्द है मुझे। तो कह रहे रात में हमने 4 बार उठ के देखा, तुमने एक बार हाय हाय नहीं करा, दिन में तुम 1 मिनट चुप नहीं हो रही। ये कह रही मुझे क्या पता मुझे क्या पता कि मैं रात में, अच्छी बात है नहीं करा। अब ये पूछ रही है सर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं कि हम जैसे ही गहरी नींद में जाते हैं, चाहे वो स्वप्न की अवस्था हो या डीप स्लीप स्टेट हो। डीप स्लीप स्टेट मतलब बिल्कुल सुषुप्त अवस्था या स्वप्न अवस्था। आप लोग जितने भी लोग ऐड हुए हैं, प्लीज ओपन योर वीडियोस। आई एम होल्डिंग द क्लास फॉर सम टाइम, एक्सेप्ट निधि, बाकी के सारे लोग प्लीज वीडियोस खोलिए। Hello, sir. Good evening. Yes, Myself, good Rachna evening. Chopra. Hi, Sir, there Rachna is some. ji. Hello, sir. Sir, there is some problem today, so I can't Okay. open video. Okay, So but please try next time that you should yes, be. sir. Oh, definitely, No sir. problem, no Last time problem, there no was problem. no problem. This time कोई only प्रॉब्लम this नहीं है। is. देवेंद्र जी, सुधा आंटी प्लीज खोलिए। एंड आई एम सॉरी, आपका नाम थोड़ा अधूरा आ रहा है, अग्रवाल के आगे ओनली पा लिखा हुआ है, तो प्लीज ओपन योर वीडियोस। पद्मा अग्रवाल। तो पद्मा जी प्लीज आप वीडियो खोल पाए तो बहुत अच्छा लगेगा, आपसे मिलना भी नहीं हुआ है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस स्थिति में कुछ और हो रहा है। जब आप सो जाते हो तो क्या हो रहा है, अगर आप में जिज्ञासाएं खड़ी होती है तो आप वहां से अपने माइंड को पकड़ना शुरू करोगे कि जैसे ही आप सो जाते हो और गहरी नींद में होते हो। अब मैं आवाज लगा रहा हूं और आदित्य से पूछ रहा हूं, आदित्य कौन सा साल चल रहा है ये? कोई जवाब ही नहीं दे रहा आदित्य। मैं आदित्य से फिर पूछ रहा हूँ, याद रखना आदित्य अब सो चुका है और गहरी नींद में। आदित्य तुम सो गए हो, ठीक है, जगे हाँ हुए जी नहीं सर, हो। थोड़ा नेटवर्क इशू है, आवाज अच्छा, मुझे लगा अभी कट कट जवाब जा रही देने है मेरे वाला है, पास। तो तुम सो गए हो। अब कोई कभी कभी गहरी वीडियो नींद, भी नहीं आपकी आ रही है सर। ओ डियर आपके नेट में इशू होगा। बाकी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, प्लीज शो योर थंब। ओके, वेरी नाइस। अभी भी पुश हो गई आपकी वीडियो। कोई बात नहीं आदित्य, अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरे एंड से सब ठीक है, ठीक है। तो सॉरी मैं माफ कीजिएगा। कीप ट्राइंग, कीप गेसिंग, अदरवाइज तुक्के थोड़े थोड़े मारते जाओ, ठीक है। अदरवाइज ये जो क्लास है ये रिकॉर्ड हो रही है और सारी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, एंड यूट्यूब का लिंक आप ले सकोगे, डोंट वरी। और आप कभी भी अगर मिस भी होता है तो यू कैन कैच अप। आदित्य अगर आपने इतना सुन लिया है तो भी बहुत काम की बात सुन ली है। ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास और आप ये रिकॉर्डिंग्स ले सकोगे। काफी नेटवर्क इशू ने ये भी नहीं सुना, ठीक है तो अभी मैं स्मिता जी से पूछ रहा हूँ कि आज कहाँ गए थे घूमने। अभी तो दिन में उन्होंने बताया कि सर मैं अच्छा स्मिता बताइए आप आज कहाँ गए थे घूमने? आई एम सॉरी आई कुडंट हियर व्हाट यू आर सेइंग। नो वॉइस। कोई बात नहीं
तो जो दिन में आप इंफॉर्मेशन लेते हो, रात को आपका माइंड ट्रांसेंड कर जाता है, कहीं ना कहीं इस स्थिति से कहीं और ड्रिफ्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है, माइंड बाहरी होता है दिन भर। आप 24 घंटों में से 16 घंटे जब आप सजग होते हो, कॉन्शियस स्टेट में होते हो, तो वो बाहर की ओर काम करता रहता है, और जैसे ही आप सोते हो तो वो इनवर्ड आ जाता है, अंदर की ओर खींचने लग जाता है, अंदर की ओर आ जाता है। इसीलिए जब मैं शीतल से पूछ रहा हूँ, शीतल कौन सा साल चल रहा है, कोई जवाब नहीं। आदित्य से पूछो, आदित्य कौन सा साल चल रहा है, कोई जवाब नहीं। स्मिता जब कह रहे थे कहाँ घूम कर आए हो, छतरपुर मंदिर, कोई जवाब नहीं ना। जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपका माइंड ट्रांसेंड करके बाहर से अंदर की ओर आ गया है। अब कान बहुत ज्यादा बाहर नहीं जुड़े हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आंखें बंद हैं। कान तो बंद नहीं हो सकते, कान खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि रात में 1-1:30 बजे व्हीकल नहीं चलते, आवाजें नहीं आती, पर जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हो तो आपको आवाजें आनी बंद हो जाती है, आपको सुनाई देना बंद हो जाता है, आपकी आंखें अपने आप पिच जाती हैं। आप ऐसे आंख खोल के, कितने ही लोग ऐसे हैं जो रात में यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल पे या टीवी पे कुछ देखते देखते सोते हैं। जब वो सो जाते हैं तो देखते हैं आंखें अपने आप बंद हो गई, कान से आवाजें आनी बंद हो गई। रात में किसी के यहाँ कुछ जल भी गया होगा अड़ोस पड़ोस में तो आपको स्मेल भी आनी बंद हो गई, मुंह तो बंद है ही है। तो आप देख रहे हो पांचों इंद्रियां अंदर खिंच गई, और आपको कोई इंफॉर्मेशन रात को नींद की अवस्था में फर्दर नहीं मिल रही। दिन भर आपने क्या किया, केवल यहां से लो, वहां से लो, वहां से लो। यू वर जस्ट कंटिन्यूअसली कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द डे। पूरा दिन केवल आपने क्या करा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इकट्ठी करी। जैसे ही आप गहरी नींद में गए, अब ये इंफॉर्मेशन आनी बंद हो गई, ये पांचों दरवाजे क्लोज हो गए। आप ये मत मानिएगा कि एब्सोल्युटली क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन फिर भी वो फर्दर अब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वो अंदर की ओर अब काम कर रहा है। मैंने पीछे भी एग्जाम्पल दिया था, जिस तरह से बैंक में होता है, 9:30 बजे बैंक खुलता है, 3:30 बजे तक पब्लिक डीलिंग होती है, बाहरी आउटर काम करता रहता है, सबसे सबकी डीलिंग करता है। 3:30 बजे कहते हैं जी बाहर वालों के लिए बैंक बंद हो गया। पर क्या बैंक बंद हो जाता है? नहीं, 6:30 बजे तक एम्प्लॉइज बैठते हैं, तो 3 घंटा इनवर्ड जाके वो अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। तो रात को जब हम सो रहे होते हैं तो माइंड इनवर्ड जाता है, क्योंकि सारा दिन वो 5 दरवाजों से, 5 इंद्रियों से, आंख, नाक, कान, मुंह, जबान, स्किन, इन सब से, चमड़ी से, बाहरी संसार से कनेक्ट बनाए रखता है, कनेक्शन। और जैसे जैसे आप बाहर देखते हो, नए नए विचार पैदा करते हो, बाहर देखते हो, नई नई इच्छाएं पैदा करते हो। सोचिए कि गौतम ने राष्ट्रपति भवन से निकल रहा था, निकलते निकलते देखो यार बिल्डिंग बड़ी सही लग रही है, मकान बनाऊंगा ना तो बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के स्टाइल का फ्रंट फसाड लूंगा, एलिवेशन में थोड़ा थोड़ा पिलर्स ये हटा दूंगा। अभी आप सोचिए कि वो गौतम खाली निकल ही रहा था राष्ट्रपति भवन से, इतने में एक थॉट भी आ गया कि घर बनाना है, लोकेशन ऐसी होगी, आगे 1 एकड़ का बंगलो होगा, आगे फ्रंट एलिवेशन ऐसा होगा। यही तो ह्यूमन माइंड है, उसे केवल इशारा चाहिए, बाकी का वो कल्पनाओं से बहुत कुछ खड़ा कर लेता है। तो एक व्यू देखा, देखते ही हमने क्या करा, कुछ थॉट्स, कुछ इच्छाएं, कुछ विचार, कुछ कल्पनाएं शुरू हो गए। और अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप भावुक भी हो जाओगे कि सपोज गौतम ने सोचा था कि 3-4 साल में राष्ट्रपति भवन जैसा घर होना चाहिए अपना, ये तो होना ही चाहिए, और अगर 3-4 साल में नहीं बना तो एक दिन वो, क्या जिंदगी है यार, क्या फालतू है कुछ, तो आप देखोगे आप भावुक भी हो रहे हो। तो आप जो बाहर देख रहे हो उससे अंदर का एक संसार बनाते जा रहे हो, जो आप बाहर देख रहे हो उससे अंदर का एक संसार बनाते जा रहे हो, निरंतर देखते जा रहे हो, निरंतर अंदर इकट्ठा कर रहे हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस है 5 सेंसेस से डेटा लाना और अंदर का एक संसार बनाते जाना। अंदर वो इंफॉर्मेशन ही नहीं भर रहे, उस इंफॉर्मेशन के साथ इच्छाएं भर रहे हो, कल्पनाएं भर रहे हो, उसके साथ कितना कुछ ऐड हो रहा है, और ये निरंतर ऐड हुए जा रहा है। मतलब मजेदार बात एक ये है कि आप इसको रोक नहीं रहे हो, ये अपने आप हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप
एक व्यू से दूसरे व्यू तक आते हो तो वहां कुछ अच्छा दिखता है, तो वहां नई नई मन में बातें आती हैं। तो रेगुलरली माइंड बाहरी संसार से जुड़ता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर अंदर जाने के बाद नई चीजें क्रिएट करता जाता है। तो बाहरी संसार के साथ हम किस स्टेट में होते हैं? कॉन्शियस स्टेट में होते हैं। पर जैसे ही सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, अवचेतन में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, यानी गहरी नींद में अब ना तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, शरीर की कोई भी चीज आपको, जैसे मैंने शीतल का एग्जांपल दिया, तो अगर मैं शीतल को बोल रहा हूँ हाँ दर्द हो रहा है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, सब कह रहे हैं वो नींद में है। नहीं तो मैंने कहा दर्द तो हो रहा होगा। अब आप देखिए सेडेटिव्स का यही एक एडवांटेज है कि वो आपको माइंड को ट्रांसेंड कर देता है, एक रेस्टिंग स्टेट में ले आता है, एक स्लीपी स्टेट में ले आता है, जिस स्टेट के अंदर बॉडी हील भी करती है, प्रोसेस भी करती है। ठीक है, और साथ ही साथ तो बॉडी कॉन्शियसनेस इस स्टेट में नहीं है। जब आप रात को सो रहे होते हो और गहरी नींद में होते हो तो उस समय आपको शरीर का कोई अनुभव नहीं है। ये भी नहीं है कि आप बॉय हो या गर्ल हो, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, इसका भेद भी रात को गहरी नींद में नहीं होता। आप एक ऊर्जा के समान, एक चेतना के समान हल्के जैसे तैर रहे होते हो। और दूसरी बात, आपको समय का अनुभव नहीं होता। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, फिर दोहरा रहा हूं, कई सारे लोग जो सोने के बड़े शौकीन होते हैं, वो 9 या 10 बजे सोने चले गए, 10 बजे सोने गए, अगले दिन 10 बजे उनकी मम्मी कह रही उठ, मम्मी अभी तो सोया था। वो क्या अभी नहीं सोया था, तेरे को 12 घंटे हो गए। मम्मी अभी सोया था, उठाओ मत। माँ सोच रही है इसको 12 घंटे हो गए, कह रहा अभी सोया था, इसको थका नहीं लेटे लेटे। माँ फिर उठा रही है कि 11 बज गए भैया, तू कब नहाएगा धोएगा, गेट अप गेट अप। और वो उठ के कह रहा है मम्मी अभी लेटा था, मेरी नींद ही नहीं भरी। आप सोचिए कि हमें समय का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। मैं अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर उनसे बोल दूं कि 3-4 घंटे एक ही पोज में लेटे रहो, सपोज अंशिका को बोलता हूँ कि अंशिका आप बेडरूम में जाइए और 2 घंटा सीधी लेटी रहिए, तो 15 मिनट वो सीधी लेटी रहेगी, 15 मिनट बाद पासा ले लेगी, फिर 15-20 मिनट इधर पासा लेगी, फिर उसके बाद कहेगी अरे कोई काम याद आ गया, कुछ ना कुछ बहाना करके वो 1 घंटे से पहले पहले उठ जाएगी। वो कंटिन्यूअस नहीं लेट सकती, ये बड़ा चंचल है, ये टिकता ही नहीं, ये टिकता ही नहीं। तो आप मजेदार बात देखिए कि रात को आपको समय का ही नहीं पता चल रहा। आप 12 घंटे एक ही स्थान पर एक ही पोजीशन में लेटे हुए और आपको पता ही नहीं 12 घंटे हो गए, और आप इस स्टेट में 12 घंटे लेट ही नहीं सकते। जब इंसान बीमार हो जाता है और उसको फोर्स किया जाता है लेटने के लिए, तो कई बार लोग चिड़चिड़ाते हैं, नर्सेस पे चिड़चिड़ाते हैं, डॉक्टर्स पे चिड़चिड़ाते हैं, वो अपनी खींच उतारते हैं कि उनको ना लेटे लेटे अच्छा नहीं लगता, उनको मन करता है कि हम घूमे। तो इस स्थिति में समय का अनुभव है, लेकिन गहरी निद्रा में, डीप स्लीप स्टेट में टाइम का भी कोई अनुभव नहीं है। यू डोंट फील द टाइम, समय कैसे पार हो रहा है कुछ नहीं पता, समय का अनुभव नहीं, शरीर का अनुभव नहीं, स्थान का अनुभव नहीं, जगह का भी अनुभव नहीं। आप रात को सो रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप स्वर्ग में हो, पृथ्वी पे हो, नरक में हो, अर्थ पे कहाँ हो, कौन से देश में हो, पता नहीं। अगर, और उसके अलावा एक और स्टेट है जिसको हम कहते हैं ड्रीम स्टेट, स्वप्न स्थिति, जिसके अंदर अंशिका लेटी तो अपने बेड पे थी, लेकिन रात में देख रही कि परी लोक में, और 2-3 परियां साथ में बैठी हैं, और वो कह रही है तुमको भी पंख चाहिए, चलो तुम्हें भी उड़ा लेते हैं। अंशिका कह रही कि दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आप देख लीजिए, ओब्लाइज ऐसा नहीं, प्रेशर नहीं देना चाह रही है, तो बड़ी स्मार्टली कह रही है ठीक है जी देख लो, आपके पास हो एक्स्ट्रा तो पंख दे दो। तो उन्होंने कहा चलो आज तुम्हें उड़ाने के लिए। तो सुबह उठती है अंशिका और सोचती है कि ये सबको अगर घर में बताया तो सारे हंसेंगे कि मैंने ना पंख लगा के मैं रात में उड़ रही थी और मैंने फ्री में टूरिज्म करा, मैं ऑस्ट्रेलिया हो यही पंख लगा के, तो सब हंसेंगे। पर वो खुद भी सोच रही कि यार मैं क्या क्या सोचती हूँ, कहाँ से सपने आते हैं अजीब टाइप के मेरे को, ये रात में पंख लगा के उड़ने के। तो शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उसको एक बात समझ नहीं आ रही कि वो कभी ऐसी कोई कल्पना नहीं करती है परियों वाली, ना उसने कुछ सोचा, ना उसने कोई कॉमिक पढ़ी, ना किसी से बातचीत करी। फिर ध्यान से सुनिएगा कि अंशिका ये सोच रही है कि अंशिका की नॉलेज के परे, उसकी जानकारी के परे, अंशिका की नॉलेज के परे, उसकी जानकारी के परे कौन है अंशिका में जो इस तरीके के विचार दिखा रहा है,
कौन है उसकी नॉलेज के परे जो ये सब कुछ दिखा रहा है, क्योंकि जो पूरी की पूरी मूवी उसने देखी रात को, जिसको हम कहते हैं सपना, ड्रीम, स्वप्न, वो कहां से आया? तो उसको सुबह उठ के मन में आ रहा है कि यार मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसको वो खुद नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसा है जो बड़ा ही जबरदस्त है, जो एक पूरी की पूरी पिक्चर जैसे दिखा रहा है, कुछ रहस्यमय, कुछ जो अनजाना है, कुछ जो पावरफुल है, जो उसकी नहीं सुनता। ये कहां से आ रहे हैं? तो ये सब क्या इशारा दे रहा है कि मेरा एक जैसे बाहरी जगत है, ऐसे ही मेरा मन, मेरा माइंड एक आंतरिक जगत बनाता है, मेरे विचारों से, मेरी भावनाओं से, मेरी इच्छाओं से, मेरी कल्पनाओं से, और जो डेटा मैं ले रहा हूं सबको मिला जुला के कंटिन्यूअसली बहुत बड़ा वर्ल्ड मेरे अंदर क्रिएटेड है। तो हमारी 3 स्थिति हैं, एक कॉन्शियस माइंड यानी सजग स्थिति, ठीक है, चेतन अवस्था, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो कि डीप स्लीप स्टेट है, बिल्कुल सुषुप्त अवस्था, गहरी निद्रा की स्थिति, जिसके अंदर ना बॉडी का अनुभव है, ना समय का अनुभव है, ना स्थान का अनुभव है। और अवचेतन की ही एक स्थिति है स्वप्न की स्थिति, जिसको कहते हैं ड्रीम स्टेट। तो ये दोनों स्थितियां जो है हमारी अंतःकरण की स्थिति, डीप माइंड की स्टेट्स हैं, जिसके अंदर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं होता, टाइम में नहीं होता, वर्ल्ड, भारी वर्ल्ड में भी नहीं होता, वो कहीं अंदर डिप्ड इन होता है। तो स्वप्न की स्थिति भी इतनी डीप नहीं होती जितनी डीप स्लीप स्टेट की होती है। तो यहां से हमें जिज्ञासा आनी चाहिए कि कुछ ऐसा जरूर है, स्वप्न हमें इशारा देते हैं कुछ मेरे अंदर है जो अनजाना सा है, जो मेरी नॉलेज के परे ये ड्रीम्स बना रहा है। डीप स्लीप स्टेट जो सुषुप्त अवस्था है, वो भी आप में ये जिज्ञासा खड़ी करना चाहिए कि क्या होता है जब मैं गहरी नींद में होता हूं। तो यहां से हमें माइंड के बारे में थॉट्स आने शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 स्टेट्स के बारे में बात करी, और कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की बात करी, ठीक है। अब एक छोटा सा इंटरेक्शन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए। मैं 2-3 लोगों का सुन चुका हूं, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। ओके, उषा जी बताइए हमारी कितनी स्टेट्स हैं अवेयरनेस की? अनम्यूट करिए आप अपने आप को। सर कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड एंड ड्रीम स्टेट। हाँ जी, तो ये जो ड्रीम स्टेट है और गहरी निद्रा है, बिल्कुल सुषुप्त अवस्था, वो दोनों किसकी हैं? सबकॉन्शियस माइंड की। और अभी आप किस स्थिति में हैं, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में? कॉन्शियस स्टेट के अंदर, ठीक है। अब मैं एक इमेज दिखा रहा हूं जिससे कुछ कुछ चीजें और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो एक इमेज को देखते हैं। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो रहा है कि हमारा वेकिंग स्टेट में है अभी हम, जिसमें 5 इंद्रियों से जुड़े हैं और बॉडी से और वर्ल्ड से जुड़े हैं। ड्रीम स्टेट है सपनों की अवस्था, और डीप स्लीप है गहरी अवस्था, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक इमेज दिखाऊंगा आपको इसी में। बहुत सारे सवाल इसीलिए हमेशा उठे कि ये माइंड क्या है। तो मैंने ये बात पहले भी बोली थी, एक बार फिर बोलता हूँ, जो हमारा ब्रेन है वो सीट है माइंड की, उसे हम लोग कहते हैं हार्डवेयर, जो फिजिकल माइंड है, जो जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। और माइंड एक तरह से सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इस पूरे जीवन को संचालित करता है। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आप ये देख सकते हैं कि जो बर्फ का हिस्सा, ये एक सफेद पहाड़ सा नजर आ रहा है, ये वो अवस्था है जिसमें अभी हम हैं। ये वो अवस्था है जिसके अंदर हम इंद्रियों के द्वारा इस संसार को जानते जरूर हैं, लेकिन ये अवस्था हमारे टोटल माइंड का 10% भी नहीं है। ये हार्डली 5% है। 95% हमारा जो मन है उसके बारे में हम हार्डली जानते हैं। आप सोचिए कि ये एक आइसबर्ग है जिसके अंदर कितना हिस्सा उसके नीचे है। तो हमारा 95% शक्ति जो मन की है उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। वी आर एब्सोल्युटली अनअवेयर अबाउट द माइंड। जो हमारी मन की शक्ति है उसका 5%, यानी सोचिए आपसे मैं जितने भी सवाल पूछूंगा उसके जितने भी आप आंसर देंगे वो 5% में से देंगे।
95% के बारे में बिल्कुल अनअवेयर हैं। तो जो हिस्सा आप अपने अपने बारे में जानते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड है, जो हार्डली 5% है। बाकी के 95% में 2 भाग हैं, अवचेतन मीन्स सबकॉन्शियस, और कई बार उसी का ही अवचेतन का ही एक और छोटा सा पार्ट है जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर रहा हूं, जो मेडिकल फील्ड का अनकॉन्शियस है हम इसे वो वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां अनकॉन्शियस का मतलब डिफरेंट होता है। यहाँ अनकॉन्शियस का मतलब ये है कि आप एक बहुत ही अपने मन की गहरी स्थिति में चले गए हो। जैसा डीप स्लीप होता है ना, बिल्कुल गहरी नींद की अवस्था, उससे भी गहरी अंदर, उससे भी अंदर, जिसके अंदर शरीर की कोई भी अवेयरनेस नहीं है। तो आप इस फोटो से देख सकते हैं कि हमारा माइंड जो है उसके अंदर केवल 5% ही ऐसा है जो भी जब भी हम जगे हुए हैं, जो हम टोटल इंफॉर्मेशन जानते हैं वो केवल 5% है। 95% अंदर, हमारे अंदर के संसार में है। और जो लोग ध्यान या ऐसी चीजें करते हैं वो उनको बाहर लेकर आ पाते हैं। तो अवचेतन मन जो है वो 95% हिस्सा है जो सबकॉन्शियस माइंड है, और उसी अवचेतन मन का एक निचला हिस्सा है जिसे अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो सबकॉन्शियस के भी अंदर कहीं डीप चली गई है। ठीक है, तो ये बात आई होप समझ में आ रही होगा। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, इस पिक्चर को एकदम केयरफुली वॉच करिए। आप देख सकते हैं कि एक इंसान दिख रहा है जिसके ब्रेन के साथ एक बहुत बड़ा बैग है, एक थैला बंधा हुआ है। तो वो अपनी आंख से, नाक से, अपनी जिह्वा से, अपने कान से, अपनी स्किन से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, या उसके मन में सुबह कोई विचार उभर रहे हैं, कोई कल्पनाएं आ रही हैं, बैठे बैठे भी आ रही हैं, या कोई इच्छाएं आ रही हैं, या कोई भावनाएं आ रही है, जो भी वो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, इस बैग में भरता जा रहा है। ठीक है, इस बैग में, यानी कि आप पूरे दिन में जो भी कलेक्ट कर रहे हो वो इस बैग में इकट्ठा है। साथ ही में कल का भी इकट्ठा है, परसों का भी इकट्ठा है, 1 हफ्ते का इकट्ठा है, 1 महीने का इकट्ठा है, इस साल का इकट्ठा है, पिछले 10 साल का इकट्ठा है, पिछले 20 साल का इकट्ठा है, पिछले 50 साल का इकट्ठा है। यानी कि जब से आपका जन्म हुआ तब से अब तक जो जो जीवन में घट रहा है, जो आप सुन रहे हो, जो देख रहे हो, हर चीज यहाँ पर इकट्ठी है। और यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लाल लाइन भी है, हरी लाइन भी है, नीली लाइन भी, यानी कि अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है, कोई एक तरीके की नहीं है। तो इसमें जो सबसे ऊपर इंफॉर्मेशन हैं, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप बार बार इस्तेमाल करते हो, जिन्हें आप बार बार पसंद करते हो। तो वो अभी इस अवस्था में आप केवल बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हो, जो कि चेतन अवस्था में है। आप बहुत सारी जगह घूमकर आ चुके होंगे, लेकिन जो जगह आपको पसंद है और जो गार्डन या जगहें पसंद है, उसकी बातें आपको याद होंगी। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप में से कोई एक जना स्कूल में कोई सब्जेक्ट पसंद करता था, तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद था उसकी टीचर भी याद होगी, उनका चेहरा भी याद होगा, उनका नाम भी याद होगा, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने बताई वो भी याद होंगी। तो वो चेतन मन में हमेशा इकट्ठा रहेंगी। जब भी कोई बोलेगा भाई तुम्हारी साइंस की टीचर का क्या नाम था, बता दोगे, कैसी लगती थी, क्या क्या सिखाया, और कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, तो वो अपने आप इस बैग में नीचे जाने लगेगा और नीचे कहीं तले में जाकर ठहर जाएगा। तो सपोज हम किसी से कोई इस तरीके का सवाल पूछते हैं, गौतम आप बताओ विच सब्जेक्ट वाज नॉट ऑफ ग्रेट लाइकिंग फॉर यू इन स्कूल? Maths, sir, maths, especially maths. Maths, okay. And tell me a subject that you liked a lot. English. ठीक है, तो अब इंग्लिश की टीचर का नाम बताओ स्कूल में। नहीं याद? Yeah, her name was Asha. ओके, और कोई खास बात जो इंग्लिश से रिलेटेड कोई चीज भी याद आ रही हो? Not as such, but it was much interesting than maths, and उसमें literature में there was nice, lot of nice stories that we would like to hear, like Shakespeare and all. So वो बहुत better लगता था than maths. हाँ, गौतम ने क्या कहा कि गौतम को क्योंकि इंग्लिश अच्छी लगती थी तो इंग्लिश की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था,
या टीचर जो बोलती थी वो सुनना अच्छा लगता था, या व्हाटएवर, क्योंकि कोई चीज जो उसको पसंद है वो ऊपर की ओर रहेंगी इंफॉर्मेशंस, वो कॉन्शियस माइंड में रहेंगी जिस स्थिति में अभी हम हैं, और जो पसंद नहीं है वो धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। या कई बार आप जिन्हें पसंद नहीं करते उसकी भी बहुत बार बातें करते रहते हो, तो जिस भी चीज की आप बहुत बार बातें करोगे वो ऊपर रहेगा। एक्चुअली माइंड का एक फंडा है, आप जिस चीज को प्राथमिकता दोगे उसे वो ऊपर रखेगा चेतन में, और जिसे प्राथमिकता नहीं दोगे वो नीचे चली जाएगी। जैसे बहुत सारे पड़ोसी हैं जो 20 साल पहले कोई आसपास रहते थे, तो आप भूल जाओगे कौन थे। कोई कहेगा देखो हाँ कोई थे तो सही, ठीक से नाम याद नहीं आ रहा। नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चीज जिसे आपने बार बार दोहराया होगा, उसके बारे में बार बार बातें की होगी, या जो भी चीज प्रायोरिटी है लाइफ में वो ऊपर रहेगी, जो प्रायोरिटी नहीं है वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बैग है। इस बैग में अभी उस स्टेट में केवल वो रहेगा जिसे आप इंपॉर्टेंस देते हो, जिसको आप महत्व दोगे वो आपको याद रहेगा, जिसे आप महत्व नहीं दोगे वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा, पर वो अभी डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट वो तब होगा जब आप उसे कभी याद नहीं करोगे, तो वो अपने आप ही गायब भी हो जाएगा। तो इस बैग में आप सोचिए, जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया कि 9:30 से 3:30 तक बाहरी वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, 3:30 से 6:30 वो अंदर प्रोसेसिंग करते हैं। ऐसे ही 24 घंटे के दिन में 16 घंटे आप जगे रहते हो, तो आप बाहरी संसार से इंटरेक्ट करते हो। 8 घंटे आपका माइंड इनवर्ड चला जाता है और वो प्रोसेसिंग करता है उन सारी फाइल्स की जो आपने इकट्ठी करी। कई सारी तो बड़ी बुरी बुरी फाइल इकट्ठी करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिनेश सूजी साहब जो है रात को सोने से पहले एक बार सावधान इंडिया देख के सोते हैं। मुझे पता नहीं देखते, वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो फाइल अंदर जाने वाली ना सावधान इंडिया वाली, और एक देखते देखते पता ही नहीं चला खत्म और दूसरा सीरियल शुरू हो गया, और उस सीरियल में भी वही था, रात में पता ही नहीं चला कि नौकर पे डाउट आ रहा था और ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब रात में सो तो गए हैं, पर ये जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, ये भय, अगर इसको उन्होंने सीरियसली लिया तो ये भय बन सकती है, ये बार बार दिमाग में चल सकती है, तो ये नेगेटिव फाइल हो जाएगी, क्योंकि ये फियर दे सकती है। कोई कोई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो जेलेसी देते हैं हमें, कोई कोई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो अपसेट कर देते हैं, कोई कोई प्रोग्राम डरा देते हैं, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे प्रोग्राम केवल एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर अब सवाल ये उठ रहा है कि आप जो भी फाइल ले रहे हो, आप अलग अलग, जैसे हम उस फोटो में देख रहे थे रेड ग्रीन ब्लू, इसका मतलब हम अपने अवचेतन में अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन भर रहे हैं और निरंतर भर रहे हैं। इसीलिए अभी हम बातें करेंगे इसके ऊपर, कई सारी बातें करेंगे। तो आपने अगर वो थैला देख लिया होगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके, देखिए कोई ऐसा थैला है नहीं, इसे काल्पनिक तौर पर समझने की कोशिश करें कि ये ब्रेन है, ये मेरे माइंड की सीट है, ये गद्दी है जहां वो बैठा है, लेकिन एक्चुअली मन जो है वो सूक्ष्म है। तो वो आप समझिए कि वो एक बैग है, एक थैला है इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का। बचपन से आज तक जो भी आपने स्कूल में सीखा वो भी है। एक बात और बोलूंगा, स्कूल से ज्यादा जबरदस्त पढ़ाई अनुभवों की होती है। हर इंसान वही ज्ञानी नहीं होता जो स्कूल जाता है, जो सजग है जीवन में वो अनुभवों से भी सीख रहा है। तो केवल किसी के ज्ञान को वो कितनी क्लास पढ़ा इससे अंदाजा कभी नहीं लगाना चाहिए कि हाँ जी कितनी क्लास, उन्होंने कहा 12th, ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जो सजग व्यक्ति है वो निरंतर अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से, द पर्सन इज लर्निंग रेगुलरली विद एक्सपीरियंसेस। तो जो सीखने की प्रवृत्ति से आया है वो उसकी कोई उम्र नहीं है, वो निरंतर सीख रहा है। तो जब से आप पैदा हुए तब से अब तक कंटिन्यूअस डेटा 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 आ रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, इस बैग में भर रहा है, अवचेतन का एक बैग। अवचेतन का जो बैग है उसके अंदर जब आप इस स्थिति में होते हो तो केवल वही फाइल्स आपको देता है जो आपको जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि गौतम अपनी टेबल पे काम करता है, तो वो कहता है देखो ऐसा है, जो 4-5 फाइल मुझे इंपॉर्टेंट चाहिए वो मुझे टेबल पे दे दो, और जो मुझे नहीं चाहिए उन्हें मेरे पीछे वाले कैबिनेट में लगा दो। तो ऐसा ही हमारा माइंड करता है। तो जो जो चीजें आपकी लाइफ की प्रायोरिटी होती है, जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, चिंता करते हो, जिन लोग को प्यार करते हो, जो भी फिक्र करते हो, जिनसे कनेक्टेड होते हो, कुछ भी या पसंद करते हो, वो सभी फाइल्स यहाँ रहती हैं इस अवस्था में, चेतन में।
और बाकी सब अवचेतन में पड़ी रहती है। पर याद रखिएगा कि इस बैग में इतना डेटा है, इतना डेटा है कि आप इमेजिन, अभी मैं दिखाऊंगा एक वीडियो, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इस बैग की लंबाई बताऊं तो अरबों खरबों किलोमीटर का बैग है ये, अरबों खरबों किलोमीटर का बैग है ये। पृथ्वी का एक घेरा लगा सकते हैं आप, इतना बड़ा थैला लेके चल रहे हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है जब से जन्म हुआ तब से अब तक का इकट्ठा है, और आध्यात्म धर्म कहता है कि जितने जन्म लिए तब से अब तक का सब इसी में इकट्ठा है। अगर आध्यात्म की कहेंगे तो ब्रह्मांड का पूरा थैला भर जाएगा, मतलब पता नहीं कितने कितने किसी ने जन्म लिए होंगे। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो जन्म से लेकर अब तक में कितने अनुभवों से सीखा होगा, कितना स्कूल में सीखा होगा, वो सारी इंफॉर्मेशंस मेरे इस सबकॉन्शियस के अवचेतन के थैले में कंटिन्यूअसली भर रही है। जो चीज आप प्राथमिकता करते हो वो ऊपर आ सकती है, जिसको आप प्राथमिकता नहीं करते वो नीचे जाती है, बिल्कुल यूज नहीं करते और नीचे जाते हो, बिल्कुल यूज नहीं करते तो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। हम आगे बढ़ सकते हैं, इतनी बात समझ आ रही है? तो इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, हमारे माइंड की 3 लेयर्स हैं। वो तीनों लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक लेयर है कॉन्शियस माइंड जिसमें अभी हम हैं, एक है सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन जो कि बैग है, और उस सबकॉन्शियस माइंड के नीचे एक समझ लो बेसमेंट है छोटा सा, वो हिस्सा है जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अध्यात्म में इसे ही कुंडलिनी रेफर किया गया, अध्यात्म में इसे ही कुंडलिनी कहा गया, वो हिस्सा हमारा जिसे हम खोलने के लिए बड़े जतन लगाते हैं, जब भयंकर हमारी पावर्स होती हैं, हमारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती हैं, यहां पर होती है। तो ये मार्ग 5 और थैला गजब बड़ा, ठीक है? तो इतना समझ आ रहा है अभी तक? कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। इफ यू आर क्लियर तो शो मी दिस, अदरवाइज हम रुकते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जिसको क्लियर, जिसको समझ आ गया शो करिए, सो दैट हम आगे मूव कर सकें। ज्योति आपका क्लियर हो गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। Sir, excuse me. हाँ जी रचना बोलिए। I have one question. जी प्लीज you. आस्क। जी सर, जैसे हम गाड़ी मान लो ड्राइव करते हैं और हम बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं और हम उसके साथ बहुत और बातें सोच रहे होते हैं, बट तब भी गाड़ी बहुत अच्छे से ड्राइव हो जाती है, नो एक्सीडेंट नथिंग, और बहुत अच्छे से जैसे बॉडी को वो हैबिट है, लाइक वो 5 सेंसेस अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं, और जबकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, हाँ जी, और तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये फिर हाँ गाड़ी ड्राइव करना सबकॉन्शियस में आएगा या हाँ कॉन्शियस में जी, होगा? एब्सोल्युटली। आप प्लीज रचना जी के एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुने, और ये बहुत लोगों के साथ होता है, जिन लोगों को खास करके ड्राइविंग में कई साल हो गए या कुकिंग में कई साल हो गए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ कुकिंग वाले भी चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने लंबे वर्ष निकाल दिए, तो वो ना अगर खराब मूड में भी बनाने जाते हैं, गुस्से में, क्या ये, और उसके बाद सब्जी इतनी अच्छी बन रही है, कोई कह रहा है तुमने देखा भी नहीं क्या डाला, होगा डाल दिया, और भी सब डल रहा है। जैसे कि रचना जी ने भी क्या बोला, जिसको कोई काम को आप बार 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 दोहराओगे, आपके अवचेतन में यानी सबकॉन्शियस में वो ट्रेन हो जाएगा, और उसके बाद आपको कोई भी जतन नहीं करना पड़ेगा, उसे करने के लिए वो स्व हो रहा होगा। बड़ी मजेदार बात है कि एक बार अपने आप को केवल किसी भी काम के लिए बार बार प्रैक्टिस करा के एक बार बस सिखाना है, और एक बार अगर सबकॉन्शियस में अवचेतन में उसकी प्रोग्रामिंग हो गई तो वो अपने आप होने लगेगा। इसमें गाड़ी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, हम सब लोगों के साथ घटा होगा कि जब रुचिका, योर बेबी इज आई थिंक 3-4 years, कुछ ऐसा, कितने साल का रुचिका योर सन? So my son is 12 years. My नहीं, daughter बेटी is 5 years. 5 5 years. अब जब वो एक साल की थी और उसने चलना सीखा था, तो कभी इधर गिरती होगी, कभी उधर गिरती होगी, क्रॉल करती होगी, वो बैलेंस नहीं बना पा रही थी। अब वो 5 साल की हो गई, रुचिका उससे कहेगी अगर बेटे गिर के दिखाओ, वो कहेगी मुझे गिरना नहीं आता।
क्योंकि जब उसने चलना 1 कदम 2 कदम 3 कदम 10 कदम, फिर चले फिर चले फिर चले फिर, अच्छा मम्मी पापा को भी चलाने का इतना जबरदस्त शौक होता है, ऐसे उनका भी होता है कि चला के मानना है ऐसे, तो बच्चे को इतनी प्रैक्टिस कराते हैं चलाने की कि आज रुचिका की बेटी, क्या रुचिका को बोलूं, रुचिका चलते चलते गिर के दिखाओ, कहेगी सर मुझे गिरना नहीं आता। अच्छा चलने के लिए क्या रुचिका कोई एफर्ट्स करती है? वो कहेगी सर प्लीज, अब ऐसे ये तो बहुत खराब क्वेश्चन है कि तुम कुछ एफर्ट, कह रही नहीं सर वो तो अपने आप सभी चल रहे थे। याद रखिएगा जब आपने सीखा था तो आप 1 कदम नहीं चल पा रहे थे, बैलेंस नहीं हो पा रहा था। अभी आप अपनी बेटी से इसको रिसेंटली इसको देख सकते हैं कि उसके लिए कितना डिफिकल्ट था खड़े होना, और अब वो गिर नहीं पा रही। यानी किसी भी काम को हम बार बार करते हैं तो इतना अवचेतन में वो चला जाता है कि उसके बाद कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते, स्व होने लगता है। ऐसे ही गाड़ी चलाने के लिए एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है कार का। जब शुरू में कोई ड्राइव करता है ना तो वो ये ध्यान करता है कि एक्सेलेरेटर इधर वाला था कि ब्रेक था, और कई बार ब्रेक दबाने की जगह एक्सेलेरेटर दबा देते हो और गाड़ी रोकनी थी, गाड़ी तेज हो जाती है, गियर बैक आगे की जगह बैक गियर। तो जो चला रहा है शुरू वो कितना कॉन्शियस है, उसे समझ नहीं आ रहा कि, और एंजाइटी में तो वो और उल्टे गियर डाल रहा है, पीछे वाले के मार दिया। पर जैसे जैसे आपने 4 महीना चलाया कॉन्फिडेंटली, 6 महीना, साल, और धीरे धीरे आपका कंफर्ट आ गया, प्रैक्टिस आई, याद रखिएगा अभ्यास अभ्यास अभ्यास, इतना स्मूथ हो गया कि अब आप, मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है ड्राइविंग करते वो बात कर रहे होते, साथ ही साथ 2 या 3 काम और भी कर रहे होते। तो ड्राइविंग पूछो कर रहे हो क्या, तो वो ड्राइविंग तो अपने आप हो रही है। मतलब वो कोई ऑटो ड्राइविंग मोड पे नहीं है उनकी गाड़ी, अपने आप चल रही है, पर वो मतलब पैर अपने आप दब रहे हैं, एक्सीलेटर अपने आप दब रहा है, ब्रेक अपने आप दब रहे हैं, गियर अपने आप चेंज हो रहे हैं, साथ में फोन पे बात भी हो रही है, साथ में खा भी रहे हैं, साथ में मूवी भी देख रहे हैं। इतने तो मल्टीटास्किंग लोग घर में भी नहीं करते जितने ड्राइव करते हुए कर रहे हैं। कैसे हो रहा है? सबकॉन्शियसली ड्राइविंग चल रही है। और एक बड़ी मजेदार बात मैंने ऑब्जर्व करी, गौतम, हम लोग का जब स्कूल खत्म हुआ, अभी तो बहुत पुरानी बात है, तो मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल खत्म होने का, वो अपनी, उसका ज्वेलर था, तो उसको अपने आइडली तो अपनी शॉप पे जाना चाहिए, पर वो घर से निकलता था और स्कूल पहुंच जाता था। फिर उसे याद आता था कि 12th खत्म हो गई, मुझे अपने शोरूम पे जाना था, फिर वहां से निकल के शोरूम जाता था। मतलब वो क्यों? क्योंकि आप भैया 12 साल एक ही जगह गए, रोज एक ही जगह, रोज एक ही, हफ्ते में 6 दिन स्कूल जा रहे हो, तो रट गया वो। अब जब 12th खत्म हो गई तो दिमाग फिर सबकॉन्शियसली कहाँ ले जा रहा है, घर से स्कूल लाके छोड़ दे रहा है। वो कई बार उसने मुझे बताया कि मैं ना कई महीने तक स्कूल जाता रहा, फिर स्कूल से शोरूम जाता रहा। तो ये प्रोग्रामिंग है जो रचना ने बात करी है, और ये हम इसको आगे बड़ी इंपॉर्टेंस देंगे कि हम अपने दिमाग को नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम नहीं करेंगे। जैसे ड्राइविंग सीखी, चलना सीखा, खाना पकाना सीखा, और जिस चीज को बार बार किया वो अब अपने आप हो रहा है, अब करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ रहे। साइकिल चलाना बिलीव में आसान काम नहीं होता है, पर जिसको आती हो कहेंगे आसान नहीं होता सर, बहुत आसान होता है। पर जो 5-6 बार गिरा उससे पूछो, जिसमें डर बैठा हुआ है चलाने का उससे पूछो। ऐसे तो चलना भी आसान नहीं होता, पर जो चल रहा है वो कह रहा है कुछ नहीं। इसी तरह दिमाग को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना, कुछ पाने के लिए प्रोग्राम करना, जो चाहिए उसके लिए प्रोग्राम करना भी उतना मुश्किल नहीं होता। एक बार मन प्रोग्राम हो जाए कि ये समझ आ जाए कि जिंदगी में जो चाहते हो उसे कैसे पाया जाएगा, तो वो स्व होने लगेगा। जैसे साइकिल अपने आप चलती है, ऐसा लगता है गाड़ी अपने आप चल रही है, खाना अपने आप बन रहा है, प्रोग्रामिंग ही है। और जो रचना ने बात करी है प्रोग्रामिंग, वो कोर पार्ट है जिस पर हमें आगे बात करनी है कि हम अपने मन को किस तरह तैयार करें अपनी दुविधाओं से निकलने के लिए, पॉजिटिविटी तक आने के लिए, सकारात्मकता को लाने के लिए कैसे तैयार करें। यही हमारा उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। तो प्रोग्रामिंग करनी कैसे है ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। रचना, थैंक यू सो मच, इट वाज वैल्यूएबल, थैंक यू। Sir, so sorry to interrupt. And one more question is, sir, पूछूं क्या मैं? हाँ पूछिए। Oh my God. सर, अनकॉन्शियस माइंड से, इज देयर एनी वे कि अनकॉन्शियस माइंड से हम कॉन्शियस माइंड में किसी इंफॉर्मेशन को ला सकते हैं? अनकॉन्शियस माइंड से ला सकते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड से तो मे बी उसका बाय रूट है, पहले वो कॉन्शियस, सब अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आएगा, में आएगा।
और सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आएगा। लेकिन जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो अनकॉन्शियस को डिकोड करने की ही होती हैं और उस तक पहुंच के इंफॉर्मेशन निकालने की होती है। क्योंकि जो हम संस्कार लेकर आते हैं, यहाँ स्पिरिचुअलिटी रोल प्ले करती है पीछे से, वो अनकॉन्शियस के साथ आते हैं पीछे से, तो उन्हें डिकोड करा जाता है, बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ये हो सकता है। अच्छा, ऐसे लेमैन नहीं कर सकता मे बी उतनी प्रैक्टिस उसमें अगर नहीं, ऐसा स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो लेमैन कोई नहीं होता रचना, लेमैन कोई नहीं होता। yes, किसी every को person अनुभव is हो unique. जाता है। I accept, yes sir, but ये हर पर्सन के लिए पॉसिबल भी नहीं है मे बी, शायद क्योंकि हम अपनी उस पावर को रियलाइज नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल। जो एक बात आपको बताऊं कि अगर आपको ये पता चलना शुरू हो जाए कि मैं कौन हूं, मेरी रचना कैसे की गई है, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क कैसे काम करता है और कहाँ परेशानी है, किस तरह से है, तो आपको सोल्यूशन मिलने लगेंगे। तो बस सजग होना भी एक सोल्यूशन है, लेकिन ये डिफिकल्ट टास्क है। जो आपका सवाल है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये इतना इजी नहीं है अनकॉन्शियस की इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस तक लाना। पर इम्पॉसिबल भी नहीं है रचना, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, पर इजी तो नहीं, इजी नहीं। सर अभी मैं कहूंगा कुछ सर। जी जी पूछिए दिनेश जी। मैं कह रहा था, अभी आपने उनसे प्रश्न पूछा था एक अभी इंग्लिश के लिए, तो हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। सोचा, थोड़ा सा सोचा पुराने जाके, तो अनकॉन्शियस माइंड को सोचने के लिए तैयार किया, तो उसने कुछ निकाला कि वो शेक्सपियर का बताते थे तो अच्छा लगता था। तो आई थिंक इट इज द वे इट इज कमिंग आउट। यस, ये सबकॉन्शियस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात बोलूंगा कि गौतम आप मुझे प्लीज एक और सवाल का जवाब दें कि स्कूल खत्म हुए कितने साल हो गए? 10 years. अब स्कूल भी प्रायोरिटी में नहीं है दिनेश जी, लेट अस अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, आपके लिए भी अब नहीं होगा क्योंकि आपको और भी ज्यादा साल हो गए, है ना। दूसरी एक और चीज, स्कूल खत्म करा, फिर उसने इंटीरियर डिजाइन करा, एक कॉलेज ज्वाइन करा, तब तक स्कूल फ्रेश था। फिर उसके बाद एमबीए करा, फिर स्कूल पीछे, उसकी इंफॉर्मेशन और अंदर चली गई, इंटीरियर की फिर भी थोड़ी थोड़ी फ्रेश थी। फिर जॉब पे चला गया गौतम, अब एमबीए थोड़ा थोड़ा फ्रेश है, इंटीरियर थोड़ा बहुत फ्रेश है, स्कूल और अंदर चला गया। तो जैसे जैसे नई लेयर आ रही हैं, पुरानी चीजें नीचे जा रही हैं। अभी अगर मैं गौतम से रियल एस्टेट के बारे में सवाल पूछूंगा, गुड़गांव दिल्ली के बारे में फैक्ट्स पूछूंगा, तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, फटाफट बोलता जाएगा, जैसे सर आपका जो भी फील्ड ऑफ वर्क होगा, क्योंकि वो अभी अभी इस समय चल रहा है तो यही है। और जो थोड़ा बीत गया वो कहीं ना कहीं शायद नीचे चला गया। तो ये भी एक इसमें एक थॉट पैटर्न मेरे मन में आ रहा है। Am I right, Gautam? Do you agree with what I'm saying? Yes sir, absolutely. Yes. तो हमारी प्राथमिकता, अच्छा कुछ ऐसे लोग हैं जो समय में पीछे ही फंसे रहते हैं। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 25 साल पहले पीछे में ही जी रहे हैं आज भी। वो अभी भी स्कूल की बातें बहुत करते हैं और उन्हें बड़ी याद रहती है। 25 से ऊपर वर्ष हो गए लिटरली, पर ऐसा हो सकता है किसी की वही प्रायोरिटी हो, वो उस पर रोज बातें करते हो तो फ्रेश होगा उनके लिए। पर जो लोग आगे बढ़ते जाते हैं उनके लिए पास्ट धुंधला होने लगता है। ये भी एक सच है, ज्यादातर लोगों का तो यही सच है। सर जो लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि बचपन में अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो उनको हैप्पीनेस दिया है या जिसने उनको तंग किया है, वो भी बार बार पुराना होने पे भी आ जाता है। और खास करके कोई खास हो, यहाँ पर अनुभवी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बात से आप ह्यूमिलेट हुए हो, इंसल्ट हुए हो, या किसी ने कहा, मैम ने कहा था सब बच्चे खड़े हो उसके लिए ताली बजाओ, तो आपको बड़ा अच्छा लगा, तो हम बहुत बड़े भी हो जाएंगे तो भी हमें याद होगा, तो कुछ मेन इवेंट्स जो सबकॉन्शियस को कोई खास इमोशन देते हो वो ऊपर हो जाते हैं, इस बैग में ऊपर की ओर रह सकते हैं। अब माइंड की पावर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ पावरफुल इज द माइंड। तो ये बात तो हमें समझ आ रही है कि हमारा माइंड जो है वो एक बैगेज है, एक बैग है जिसमें बहुत सारी इच्छाएं, विचार, सबसे इंपॉर्टेंट विचार हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं जो भरी पड़ी हैं। और कितनी है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप अपने चेतन को बोल के सोगे
सपोज बरखा अपने आप को ऐसे से बोलते हैं, बेटे आज मुझे अच्छा सपना दिखाइयो। उसको बहुत प्यार करती है, किसको? अपने माइंड को, के किसी और के नहीं। उसे बोलते थे प्लीज आज ना मेरे को स्विट्जरलैंड ले जा, और वो बर्फ में मैं खेल रही हूँ, और अपना फैमिली भी हो साथ में। ऐसा नहीं कि वो अकेली अपने आप को स्विट्जरलैंड में देखना चाहती है, पूरा परिवार साथ है, और खूब बढ़िया से दिखाइयो और मजा आए आज, ठीक है ना? ठीक है, उसे खूब प्यार करा। किसे प्यार कर रही है? अपने ब्रेन को और माइंड को इंडिकेट करें कि आज मुझे ये सपना दिखाइयो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे लेकिन आता है। पहली बात तो जरूरी नहीं कि इन्होंने जो ऑर्डर्स पास करे थे वो फॉलो होंगे। इन्हें सपना आए, कोई जरूरी नहीं सुनेगा वो, ठीक है? और सोचो वो किसका माइंड है? बरखा का। किसकी नहीं सुन रहा? बरखा की। तो बरखा बड़ी निग्लेक्टेड फील करती है कि भाई तू मेरा माइंड है कि किसी और का माइंड है? तू मेरी नहीं सुनता, तो मेरे अंदर क्या कर रहा है? क्यों है मेरे अंदर? अच्छा, कभी उसने सपना दिखा भी दिया, फिर वही स्टैंडर्ड सपना। क्या है सपना? वो जंगल में भाग रही है, अंधेरा हो गया है, चीख रही है बचाओ बचाओ, और बहुत चीखा तो कोई बचाने आया, देखा कौन था? तो वो शेर ही था, और जोर जोर से चीखने लगे, अरे भाई तुझसे ही तो डर के भाग रही थी, कहाँ भागू? और बरखा देख रही, वो पसीने पसीने। रियलिस्टिकली बरखा के हस्बैंड बगल में, वो देख रहे हैं ये सच में प्रेसिपिटेट कर रही है, एक्चुअली चेहरे पे पसीना है सोते हुए। आप देखिए किस तरह फिजिकल रिस्पॉन्स है, हार्ट पल्सेट कर रहा है, एक्चुअली उसे फील कर रही है, क्योंकि जब आप सपने में होते हो तो उस समय वो सच होता है। उस समय बरखा डर रही है, कह रही है बस कि सुबह बोलेगी कि तुझे स्विट्जरलैंड बोला तो तू दिखाई मत, तो सुनता नहीं मेरे काम का एक सपना मुझे नहीं आता, पता नहीं कहां से किसका दिमाग है मेरे अंदर। और रात में भाग रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, पेड़ पे चढ़ गई तो पीछे से ठक ठका। उसने कहा कौन है? तो देखा बड़े वाला गुरीला बैठा था। कह रही है यार मैं क्या, मेरी रैगिंग हो रही है लिटरली। और इतने में बंदर काटने वाला था पास आके, इतने में इनके हस्बैंड ने उठा दिया। तो इन्होंने बड़े हाथ जोड़े, थैंक यू, तुम आगे से मुझे ना 15-20 मिनट पहले उठा दिया करो, थैंक यू, बंदर मुझे काटने वाला था। तो फिर ये सुबह उठ के सोच रही है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है सपना क्रिएट किसने करा, ये बंदर और भालू और सांप और जंगल। इसका मतलब इनके अवचेतन के बैग में कुछ भय है, कुछ फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है। ये कह रही है स्विट्जरलैंड, पर अवचेतन जानता है कि वो इस समय जो सबसे बड़ी चीज से लड़ रहा है वो है भय। तो वो कहीं मैसेज दे रहा है। अब सोचिए जो मास्टर है वो कौन है? चेतन मन नहीं, जिसमें आप अभी हैं, हम सब अभी, ये मास्टर नहीं है। 95% ज्ञान रखने वाला मास्टर है, जिसे अवचेतन कहते हैं, सबकॉन्शियस। वो डिसाइड करता है बरखा को क्या दिखाना है, ये नहीं। 5 वाले को तो क्लास का मॉनिटर। अब आप सोचो, बरखा क्लास का मॉनिटर है कॉन्शियस माइंड, और टीचर है सबकॉन्शियस माइंड। तो डिसीजन क्लास में कौन लेता है, मॉनिटर या क्लास टीचर? क्लास टीचर। मॉनिटर को ऐसे कहती है गेट बैक टू योर सीट एंड सिट डाउन, वो भी चुप होकर बैठ जाता है, उसकी कौन सुन रहा है? तो अभी आप जिस अवस्था में हो, ये कोई बहुत, ये केवल एक जैसे ऑफिस का रिसेप्शन होता है ना, डेटा लाने का काम कर रहा है, एनालाइज करने का काम कर, लेकिन असली मास्टरमाइंड हमारा अंतर्मन है, अवचेतन की स्थिति है। अंतर्मन में सारी शक्ति है, अंतर्मन में सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे अंतर्मन में सारा ज्ञान है, जो हम और इकट्ठा बाहर से ही करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर इस स्थिति में हम नहीं हैं। डिसीजन मेकर है वो, क्योंकि रात को आप कुछ भी उसे बोल रहे हो, पर वो अपने हिसाब से, जो आपके अंदर मास्टर है, जो गुरु है, वो अपने हिसाब से सपने को क्रिएट कर रहा है। सोचिए, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कौन है? बरखा का सबकॉन्शियस माइंड। और वो इस इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है और एक मूवी बनाता है और बरखा को दिखाता है। तो बरखा को समझने में आ रहा है कि कुछ पावरफुल है जो मेरे अंदर है। सोचो, उसमें इतनी अकल है, एक स्क्रिप्टिंग करता है, कैरेक्टर चूज करता है, आपको भी रखता है और आपको कोई मैसेज भी देता है। वो बता रहा है कि आप में किसी तरीके का भय है, स्विट्जरलैंड को छोड़ो, पहले इस भय से लड़ो, तुम डरते हो। वो कुछ बता रहा है। वो क्या बता रहा है? वो सपने को डिकोडिंग करके समझ आ सकता है। तो मास्टर जो है वो मूर्ख नहीं है,
हम हंस तो सकते हैं कि तुमको कहो कुछ और तुम करते कुछ और हो, ऐसा बोल सकते हैं अपने मन को, पर स्वप्न भी उसी की भाषा है। किसकी? अवचेतन की, आपके अंतर्मन की। अंतर्मन क्या है? आपका वो बैंक है, बरखा इंटरनेशनल नॉलेज बैंक। कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, जैसे देवेंद्र जी का इंटरनेशनल नॉलेज बैंक क्या है? उनका अंतर्मन, जिसमें निरंतर बचपन से लेके आज तक की सारी स्मृतियां इकट्ठा हैं। तो हमारा अपना भी एक बैंक है। ये बैंक वो नहीं है जिसमें धन है, ये बैंक वो है जो धन से भी ज्यादा धनी बनाता है हमें। ये वो बैंक है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, स्मृति है, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, सब कुछ है। कब से? जन्म से अब तक का। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जन्म जन्मांतर का है। साइंस नहीं मानती पुनर्जन्म को, लेकिन चलो जन्म से अब तक भी बहुत साल होते हैं, कम नहीं है। कितना कुछ हम रेगुलर सीख रहे होते हैं, है ना? तो वो कहां पर होता है? रेगुलरली हमारे पास इकट्ठा होता है। तो हम सब एक एक बैंक के मालिक हैं। मैं इसे बड़े सप्रेम गुरु बोलता हूं। मैं इस अवचेतन को गुरु बोलता हूं। मैं कहता हूं हमारे पास एक मास्टर है, आप उस मास्टर को समझो और उस मास्टर को के साथ तालमेल बैठाओ, जिससे कि आप अपने जीवन को रूपांतरित कर सको। ये मास्टर है जिसकी प्रोग्रामिंग लाइफ को चेंज करेगी। ये मास्टर है जिसके साथ इसको समझने से जीवन परिवर्तित होगा। कुछ अच्छे डिफरेंसेस हैं जिन्हें समझते हैं जब हम इस स्थिति में होते हैं, चेतन अवस्था में होते हैं, तो हम सही गलत, कल्पना और सच्चाई में फर्क कर सकते हैं ना। जैसे कि हम सीरियल कोई देखें और सीरियल में बड़ी वियर्ड चीजें होती है ना। तो एक कोई सीरियल मुझे ध्यान पड़ता है, कोई उसके बाद से सीरियल्स पे से विश्वास उठ गया था। बहुत साल पहले का था कि कोई लेडी देखा था, मुझे नाम भी ध्यान नहीं, कैरेक्टर ध्यान नहीं, पर इतना तो बड़ा फुलिश सा एक सीन था कि एक लेडी किडनैप होती है और उसकी हमशक्ल उसके घर आ जाती है। ठीक है, और 15 दिन वो वहीं रहती है। हस्बैंड पता नहीं कौन सी खुमारी में था कि उसे पता ही नहीं चलता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। ठीक है, अब हमें कितना अनरियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी भी हमशक्ल हो कि हस्बैंड को बीवी नहीं पता चल रही। अच्छा कोई बात नहीं, खैर 15 दिन बाद वाइफ किडनैपर से छूट जाती है, वो घर आती है और हमशक्ल भाग जाती है। तो जो वापस आती है वो सोचती है अब मैं आ तो गई हूँ, बेकार सबको क्या परेशान करना है, वो नॉर्मल जीने लगती है। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा हो सकता है कि एक कोई लेडी किडनैप हुई और 15 दिन वापस आए और वो आते किसी को ना बताए मैं किडनैप थी। नॉर्मल इंसान तो कम से कम 1.5 साल तक बताता रहेगा, फिलहाल 3 दिन तक तो हैंगओवर में होगा ये बताने में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। पर उस लेडी ने कहा बेकार सब लोग परेशान हो जाएंगे, तो बस वो हमशक्ल गई, वो आई और नॉर्मल। तो मैं ये मेरे को क्या महसूस हुआ कि ये रियल नहीं है। इस स्थिति में आप रियल और इमेजिनेशन में फर्क कर सकते हो। और मैं आज भी इस बात को लेके हंसता हूँ। उसके बाद से मैंने एक्चुअली सीरियल्स देखने बंद कर दी। मुझे बहुत इमेजिनेटिव लगते हैं, बहुत इमेजिनेटिव, क्योंकि वो चाहते हैं, डायरेक्टर्स चाहते हैं कि आप फैंटासाइज करो, आप कल्पना के क्षेत्र में जाओ। तो इस स्थिति में आप रियल और इमेजिनेशन में, कल्पना और सच के बीच में डिफरेंस कर सकते हो। लेकिन अवचेतन की स्थिति में ऐसा नहीं होता। अवचेतन की स्थिति में आप जो इंफॉर्मेशन दोगे वो उसे सच मान लेता है। आप मैं बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपकी हर कल्पना उसके लिए सच है, हर इच्छा सच है। वो तो आका की तरह पावरफुल है अंदर, जो 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 इच्छा मेरे, जो कबूल 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 बस। तो इस स्थिति में जिसमें आप हो, इसमें आप बड़े रैशनल हो, बड़े लॉजिकल हो और आप रियल और इमेजिनेशन में फर्क कर सकते हो। लेकिन अवचेतन के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है उसे वो सच लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी में कुछ देखो और वो आपके अवचेतन में चली जाए तो अवचेतन उसे सच मान लेगा। फॉर एग्जाम्पल 4-5 मूवीज ऐसी देख लो जिसके अंदर कुछ वियर्ड हो रहा हो, तो आप अपनी लाइफ में भी उसे मानने लग जाओगे, आपको ऐसा लगने लगेगा कि हो रहा है। तो अवचेतन रियल और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं बता पाता। जैसे वो शरीर किस स्थिति में पता होता है, चेतन में पता होता है। अवचेतन में शरीर का कोई अनुभव नहीं होता, वो एक ऊर्जा के समान, एक बैग है स्मृतियों का, है ना। तो
ये हमें बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी सी? और नहीं तो अदरवाइज हम जब नेक्स्ट क्लास में होंगे तो हम इस पर और भी बात कर सकेंगे। तो आप ये समझने की कोशिश करना कि ये जो हमारा माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर एक खास बात होती है, वो ये है जो हमें सीखनी है कि इस स्थिति में एक काबिलियत होती है, वो है एकाग्रता की। केवल इस कॉन्शियस स्टेट से एक बात सीखनी चाहिए, वो है एकाग्रता की एबिलिटी। तो आप प्लीज नोट करिए कि कॉन्शियस स्टेट में खास एबिलिटी है, एबिलिटी टू फोकस। और जो लोग एकाग्रता सीख गए हैं, हम इस पर खास बात करेंगे, पूरा सेशन बात करेंगे माइंडफुलनेस पर। जिन लोग उन्होंने 25% विजय प्राप्त कर ली, एकाग्रता मन की एकाग्रता सबसे पहली विजय है जो 25% प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। वो केवल इसी स्थिति में हो सकती है। आप अवचेतन में कोई एकाग्रता नहीं कर सकते, वहां जाके तो गुम जाओगे। जैसे ही आप अपने अंदर उस अवचेतन की स्थिति में जाओगे, क्योंकि उसमें इतना इंफॉर्मेशन है, खो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि कहां पहुंच गया मैं। आप सोचिए कि आप सरप्राइज्ड हो जाओगे कि मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है। इसीलिए मैक्सिमम लोग जिन्होंने ध्यान साधा, वो जब अपने अंदर गए तो इतना ज्ञान उनको अपने अंदर से महसूस हुआ कि वो जो बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे शब्द स्वयं ब्रह्मा है। ज्ञान हम सब में लेकर आए। अब सोचिए हम सब लोग कितने अनुभव इकट्ठे कर रहे हैं, कितना कुछ निरंतर सीख रहे हैं। तो बट क्या होता है, बस वो रिडंडेंट जाके किसी बैग में भरता रहता है, वो यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। यही विवेक का फायदा है कि वो इस्तेमाल करना सिखाता है हमें, है ना। तो हम ये बात ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इस स्थिति में, कॉन्शियस स्टेट में, सजग स्थिति में, चेतन अवस्था में जिसमें अभी हम हैं, इस स्थिति के अंदर एक चीज जो काबिलियत इसमें हमें सीखनी चाहिए, वो है एबिलिटी टू फोकस। जैसे ही हम फोकस की कैरेक्टर को लेकर आना शुरू करते हैं, हम अपने काम की चीजें इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे काम का वो लेते हैं, जो काम का नहीं छोड़ देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि बाहर मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो पहले आपको हर चीज इंटरेस्ट करती थी, है जैसे कॉमेडी मूवी अच्छी लगती थी, एक्शन मूवी ऐसी, ऐसे बाहर जो झगड़े हो रहे हैं, पुलिस आई है, वो भी अच्छा लगता था, चल के देखिए किसके घर का झगड़ा है। अब जब आप में एकाग्रता आएगी और आपको अपनी प्राथमिकता पता चलेगी, तो आपको लगेगा यार मेरे को क्या लेना देना उस झगड़े से, मैं क्यों फालतू में अपने अवचेतन को एक अनवांटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आप उस फोकस होगा तो आप वो नहीं करोगे, फोकस होगा तो क्या करना है क्या नहीं करना वो समझ आने लगेगा, सेलेक्टिव होना शुरू कर दोगे, एक छलनी आ जाएगी सही और गलत का भेद करने की, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बैग जो भर चुका है, याद रखिएगा, अभी तो उसमें से नेगेटिविटी निकालना बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जितना बड़ा बैग उतना कार्मिक डेट, उतना जबरदस्त आप पे लाइफ में प्रेशर होगा। जितना भारी बैग होगा जिंदगी में, उतना ही तनाव और प्रेशर आपके ऊपर होगा, उतना ही आपकी कम चल रही होगी और किस्मत और वक्त ज्यादा चला रहा होगा आप पर। आप कुछ ज्यादा बदल नहीं पाओगे। आप जैसे कहते हैं ना, बस फन पटकते रह गए पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन का बैग बहुत हैवी है, कार्मिक डेट्स बड़े स्ट्रांग है। तो मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, पहली एबिलिटी जो हमें डेवलप करनी है इस स्थिति में, कॉन्शियस स्टेट में, वो है एबिलिटी टू डायरेक्ट फोकस, एकाग्रता की एबिलिटी। और क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड शिप के कैप्टन की तरह है। कैप्टन क्या करता है? बाहरी संसार को इंट्रोस्पेक्ट करता रहता है, समझता है, देखता है और डेटा लेके इनर वर्ल्ड में चला जाता है। तो हमारा अभी का स्टेट कौन सा है? आउटर वर्ल्ड का है, हम बाहरी जगत देख पाते हैं। अभी अगर मैं किसी को बोलूंगा आंखें बंद करो तो वो सो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम मेडिटेशन या प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम अपने इनर वर्ल्ड को देख पाते हैं, अपने विचारों को देख पाते हैं, कल्पनाओं को देख पाते हैं, हमारे आंतरिक संसार को समझ पाते हैं कि हाँ मैं भावुक हूं। कई बार लोग आंखें बंद करते हैं और कोई विचार आने शुरू होते, रोने भी लग जाते हैं। तो जैसे आपका एक बाहरी संसार है, ऐसे ही आपका एक आंतरिक संसार है। इनफैक्ट आपका इनर वर्ल्ड 95% है और आपका आउटर वर्ल्ड 5% है। सोचिए कितना पावरफुल क्या है इनर वर्ल्ड।
याद रखिएगा, आपके जीवन में तकलीफों की एक बहुत बड़ी वजह आपका इनर वर्ल्ड अपसेट होना है, कंट्रोल्ड ना होना, सॉर्टेड ना होना। जो आंतरिक, जो अवचेतन वाला हिस्सा है, वो उसी को मैं गुरु कह रहा हूं बार बार, ठीक है। तो बाहरी संसार से हम बड़ा ही सजग होके, केयरफुल होके कनेक्शन बनाते हैं, काम की चीजें लेते हैं, अनवांटेड चीजें नहीं लेते, कबाड़ा नहीं लेते, फालतू इंफॉर्मेशन नहीं लेते, क्योंकि फालतू इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? मेरे बैग में, और मेरा बैग भरता जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, बड़ा केयरफुल हो जाता हूं, और बाहरी संसार में अपनी इंद्रियों को भी बड़ा केयरफुली कनेक्ट करता हूं। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या समझना है। कितनी अच्छी बात है, इस समय मैं बस एक जनरल अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूं कि इस ग्रुप पे कुछ स्टूडेंट्स वो भी हैं जो अवेकनिंग विजडम में हैं, और प्रत्याहार वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसे प्रत्याहार कहते हैं कि एक एक इंद्री के ऊपर सजग होना। तो एक एक महीना मैं बरखा को देख पा रहा हूँ, आंटी को देख पा रहा हूँ, और कई सारे लोग को, शीतल को देख पा रहा हूँ, निधि को देख पा रहा हूँ, कई सारे लोग जो उस प्रोग्राम से भी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक एक सेंस को लेकर सजग हो रहे हैं कि मुझे फालतू चीजें देखनी नहीं, फालतू चीजें सुननी नहीं, फालतू चीजें बोलनी नहीं, है ना। तो ये हम माइंड की इंद्रियों को, 5 घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसे प्रत्याहार कहते हैं योग की भाषा में। पतंजलि योग सूत्र इसे प्रत्याहार बोलता है। प्रत्याहार मीन्स एक एक इंद्री को कंट्रोल करो और मन पे संयम लेकर आओ। जिसने अपने मन को साध लिया, उसके लिए उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है, सबसे बड़ी विजय। और ये इंद्रियां, अगर मैं आपको सच बोलूं तो इंद्रियां इंद्र के समान है। इंद्र के बारे में हम बड़ी वियर्ड कहानी देखते हैं ना, कि इंद्र जब बड़े रिलैक्स्ड होते हैं तो अपने इंद्रासन पे बैठे होते हैं और वो अपना डांस वांस देख रहे हैं और सब बहुत अच्छा चल रहा है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन उनको पता चलता है कि कोई राक्षस बड़ा शक्तिशाली हो गया, और फिर वो उनका इंद्रासन हिल जाता है। फिर वो साम दाम दंड भेद करने लग जाते हैं और किसी तरह सोचते हैं भाई मेरा इंद्रासन बच जाए, बस मैं बच जाऊं। फिर वो सही गलत भी करने लग जाते हैं, है ना, कई बार उल्टे सीधे काम भी करे, और फिर युद्ध होता है और वो हार जाते हैं। फिर हाथ जोड़ते हुए त्रिदेव के पास पहुंचते हैं कि भगवान कुछ करो, मेरा इंद्रासन छिन गया। इससे सबसे जबरदस्त चीज सीखने की है, ये इंद्रियां इंद्र के समान है। इंद्र जैसे बार बार भ्रमित होते हैं, बार बार भटकते हैं, बार बार भटकते हैं। आप बाकी की जो त्रिदेव हैं, भगवान शिव को देख लो भटकते हुए, कितने केंद्र में दिखते हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी सब केंद्र में दिख रहे हैं, एकदम सपने, एकदम शांत। और इंद्र जी इतनी जल्दी जल्दी डोलते रहते हैं। ये इंद्रियां ही हैं जो 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, इंद्र के समान है, जो बार बार विचलित होंगी, जो बार बार भटकेंगी, जो बार बार इधर उधर होंगी। और उसके पीछे जो माइंड है, अगर इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो आपको इंद्रासन हिलने की चिंता नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ये वाक्य सुन सुन के शायद थक गए होंगे। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, केंद्र में रहना है, केंद्र में रह रहा है। हमें पता ही नहीं चलेगा हम कब परम तत्व में रह रहे होंगे। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्र के बराबर है बिल्कुल। हमारे शरीर में देवता इसी तरह सिंबॉलिकली है। तो मैं जब इंद्र भगवान को देखता हूँ तो मैं बार बार अपनी इंद्रियों पे फिर वापस आता हूँ, हे प्रभु सबको कंट्रोल्ड रखना, क्योंकि ये ही मन भटकाएंगी। ये बार बार आंखें आपके मन को चंचल कर देंगी, कभी इसका स्वाद चंचल करेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मन हमेशा विचलित रहेगा। तो चेतन मन में इंद्रियों पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे हम फोकस को डायरेक्ट करना सीखते हैं, थोड़े सजग हो जाते हैं, तो अनवांटेड से अपने आप को खींच लेते हैं, जो फालतू है इंफॉर्मेशन से खींच लेते हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल माइंडेड नहीं हूं, ना मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक खबरें नहीं सुनता, ठीक है। तो मैंने अपने आप को वहां से खींच लिया। किसी का कोई पॉलिटिक्स में है तो उसका इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसे सुननी चाहिए, लेकिन जो आपके काम की चीज नहीं, वहां से आप खींचो। क्यों अपने थैले को, क्यों अपने अवचेतन को अनवांटेड इंफॉर्मेशन से भर रहे हो? जो आपकी जीवन में इंपॉर्टेंट है, जो आपके कर्तव्य के लिए जरूरी है, वो तो आप लाओ। तो फोकस, एकाग्रता हमारे लिए केवल इसी स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, यही वो स्टेट है जिसमें हम रियल और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। रियल
और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तब कि जैसे ही हम अवचेतन में जाएंगे, यानी कि स्वप्न की स्थिति में, मैंने बरखा का एग्जांपल लिया, बरखा को कोई बोले अरे वो सपना था, तो बरखा बोलेगी कि सपने में आके क्यों नहीं बताया कि सपना था। मतलब वो कहेगी जब मैं पेड़ पे बैठी थी, चीख रही थी, तब आते बचाने, तब आते बताने सपना था। अभी खुले में तो मुझे भी पता है सपना था। रियलिटी ये है, उस समय जब बरखा सपने में थी तो उनके लिए वो सच था। हम सपने के बाद तो ऐसा कुछ भी मजाक बना सकते हैं, पर सच ये है कि जब आप उसे जी रहे होते हो तब आप जानते हो कि आप किस भावनात्मक उथल पुथल से गुजर रहे हो। इतना सामान्य नहीं है जैसा हमें अभी महसूस हो रहा है ना, अब हम बाहर आ गए ना उससे। तो अवचेतन के लिए वो उस समय का सच है। उसी तरह जो सुषुप्त एकदम गहरी नींद की अवस्था होती है, वो भी अपने आप, पर वो जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो उसे रियल ही मानता है। तो उस बैग में जो जो है वो उसके लिए रियल है, उसके लिए कोई कल्पनाएं नहीं है। कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं, विचार जो उसके पास है सब सच है। वो एक छोटा से, वो शक्तिशाली है पर बड़ा सरल है। शक्तिशाली है, आपसे 1000 गुना इस चेतन से शक्तिशाली है, लेकिन सरल है। इसीलिए वो जो उसके पास है वो उसको सही मान रहा है। अब एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, ठीक है, और फिर इस वीडियो से भी हमें कुछ समझ में आएगा। मैं बीच बीच में ना इसको ये वीडियो इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता जाऊंगा। अगर किसी के लिए, किसी को असुविधा होगी समझने में, तो आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। ओके, ये वीडियो ये हाईलाइट करेगा कि पावर ऑफ माइंड क्या है, और हमें कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे। कंप्यूटर की हम कितनी तारीफ करते हो, बॉय गॉड कंप्यूटर में कितना कुछ है, माइंड उससे कितनी गुना ज्यादा है हमारा और हम सबका। प्लीज डोंट थिंक कि कोई आइंस्टाइन या कोई वो ये बड़े जबरदस्त थे। हम सभी उस जबरदस्त माइंड के साथ पैदा हुए हैं। किसी को रियलाइज हो जाता है, किसी को रियलाइज नहीं होता। उसकी रचनाएं सारी गजब हैं, गजब रचनाएं हैं। हेलो सर, हाँ जी, यस यस। हाँ सर, वन स्मॉल क्वेश्चन। हाँ जी, सर जैसे हम ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को देखते हैं जो कि 5 ईयर की एज में अभी, जैसे कौटिल्य, चाणक्य एटसेट्रा एटसेट्रा, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब अगर वो सेम ही लेवल ऑफ माइंड होता तो वो इतनी सी उम्र में कैसे इतना सब कुछ गेन कर सकते? देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। Is it Smita's question? Yes, sir. Yes. Okay, okay. Your voice was cracking, and you were not visible. Smita, yeah. Consciousness is a big bank of informations. Now, IQ is one part. Intelligence quotient is one part. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अब जिनका IQ का लेवल, क्योंकि उनके अंदर आप ये समझ पा रहे हो कि उन्होंने अपने IQ को कुछ बाई बर्थ IQ थोड़ी सी पॉलिश लाते, कुछ पॉलिश कर लेते हैं। आप एक बात समझना कि पोटेंशियल सब पर है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि कुछ बाय बर्थ नेचुरल पोटेंशियल उनमें दिख गया, उनके माँ बाप ने कुछ नहीं करा, और कुछ बच्चों ने अपने ऊपर एफर्ट्स करा और पोटेंशियल को निकाला। तो हम सभी लोग पोटेंशियल लाए हैं। सवाल एक ये है, किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा और किसी को कुछ एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं और किसी को पता ही नहीं उसमें पोटेंशियल है। ज्यादातर लोग स्मिता ऐसे हैं जिन्होंने कोई सही एफर्ट्स नहीं लगाए और उसके बाद पोटेंशियल निकाला ही नहीं। मैं आपको कई ऐसी एकेडमीज दिखा सकता हूं जिसके अंदर वो बच्चे का कोई टेस्ट लेके एडमिट नहीं करते हैं और उसके IQ को इतना गजब इंप्रूव कर देते हैं, और उनकी मेमोरी, उनकी इंट्यूटिव स्किल्स, यानी कि पोटेंशियल हम सब में है। किसी का नेचुरली अनफोल्ड हो जाता है बिकॉज, और कुछ लोगों के लिए एफर्ट करने पे खुल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू डू, सम डू इट नेचुरली एंड सम नीड हेल्प, बस। क्योंकि कुछ को वेज नेचुरली मिल जाते हैं और कुछ को वेज नहीं मिलते तो वो बाहरी मदद से कर पाते हैं। हाँ सर, कुछ अनरियलिस्टिक से एग्जांपल भी हैं। हाँ, वहाँ स्पिरिचुअलिटी रोल प्ले करेगी स्मिता, बिकॉज कुछ लोग संस्कार के साथ
जी मतलब जिसको हम हिंदी में प्रारब्ध वर्ड बोलते हैं, प्रारब्ध के साथ कुछ चीजें बड़ी सरल लेकर आते हैं, इसीलिए वो आते ही इस लाइफ में फटक से खुल जाती हैं। हाँ जी हाँ जी और माइंड को Yes. भी स्पिरिचुअली लिंक किया जा सकता है, बिकॉज वो माइंड के अंदर वो कॉन्शियसनेस के साथ ही आता है। हाँ, थैंक यू। आप लोग प्लीज सारे लोग अपने वीडियोस नेक्स्ट टाइम ऑन रखें, बिकॉज इट इज बेटर कि वो क्लास का फील आएगा। ठीक है, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हम लोग वीडियो देखते हैं और मैं इसको हिंदी में भी समझाता जाऊंगा। Let's look at how powerful your mind is. Let's compare your mind to the most sophisticated man-made device ever created, the computer. The average computer can hold about 250,000 pictures, 20,000 songs, and hundreds of full-length videos. Nowadays on something the size of my finger. Crazy. But let's compare it to your mind. Your mind can perform an estimated 10 quadrillion operations per second. हम इसमें अभी तक ये बात बोली कि पता नहीं कितनी ही हजारों मूवीज, और अब तो खैर ये वीडियो भी पुराना है, तो कितनी मूवीज, कितने सॉन्ग्स, कितना इंफॉर्मेशन, कितना डेटा हम अपनी हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स में सेव कर सकते हैं। पर हमारा दिमाग 10 ट्रिलियन क्वाड्रेंट इंफॉर्मेशन एक सेकंड में प्रोसेस करता है। एक सेकंड में। हम देख रहे थे कितना इंफॉर्मेशन थी, ये देखिए। Finger. Crazy. But let's compare it to your mind. Your mind can perform an estimated 10 quadrillion operations per second. आप सोचिए कि कितनी एक कंप्यूटर से कितनी हजार लाख गुना फास्ट और ज्यादा डेटा रखने वाला हमारा अवचेतन मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मजेदार बात है कि इसका अनुभव इंसान को क्यों नहीं होता, वो हमेशा बाहर ही होता है, वो हमेशा इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे पता ही नहीं कि अंदर कुछ है। सबसे ज्यादा पावरफुल माइंड जो है उसका सबकॉन्शियस है। Second, without you even knowing it. Wow. अब मजेदार बात यह कि हमें मालूम ही नहीं है कि ऐसा है। Ask yourself right now, what's making your blood flow throughout your veins with the perfect amount of pressure to keep you alive? What's making your heart beat right now? Are you consciously? कितनी अच्छी बात है कि आपकी हार्ट बीट, आप तो चला नहीं रहे, आपकी जितनी भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो आप कर नहीं रहे। जब आप सो रहे होते हो तो भी आपका शरीर काम कर रहा होता है, तो सवाल है कैसे? आप तो कर नहीं रहे। आप ना हार्ट बीट अपनी पंप कर रहे हो, ना ही ब्लड को पंप कर रहे हो, ना ही कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया शरीर के अंदर की आप खुद नहीं कर रहे, वो स्व हो रही है। स्व कैसे हो रही है? वो माइंड फंक्शन कर रहा है। आपका माइंड वो मास्टर है जो आपको जिंदा रखता है। आपका माइंड वो मास्टर है जो आपके विचारों को, आपकी इच्छाओं को, कल्पनाओं को सॉर्ट करता है, काम की चीज को ऊपर लेकर आता है। जो काम की चीज नहीं होती नीचे ले जाता है, जो बिल्कुल बेकार है, प्रायोरिटी में है ही नहीं, प्राथमिकता में है ही नहीं, उसे निकाल के बाहर कर देता है। तो एक बहुत बड़ा मास्टर है जो आपके पूरे के पूरे जीवन को संचालित करता है, बॉडी को गवर्न करता है, आपकी अंदर के पूरे वर्ल्ड को, माइंड को गवर्न करता है, आपके पूरे शरीर को गवर्न करता है। Commanding your heart to beat right now? No. What's maintaining your body core temperature to the perfect degree to keep you alive? What's doing the 6 trillion things to your 60 trillion cells every single second? It's something called your subconscious mind. This is the powerhouse to who you are. Your cat has it, even your puppy has it. But of all the things that your subconscious mind can do, अच्छा, ये अवचेतन मन, ये जो आंतरिक गुरु है, ये जो इंफॉर्मेशंस का बैंक है, ये सबके पास है। बिल्ली क्या, कुत्ता क्या, इंसान क्या, सबके पास। क्योंकि वो स्मृतियां कहाँ जा रही हैं, सब पहचान लेते हैं ना। एक दोबारा से किसी को देखने, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता तो पहचान जाता है कि अरे हाँ, ये तो कल भी मुझे मिला था। तो कहीं ना कहीं कहीं तुम्हारी स्मृतियां इकट्ठी हो रही हैं। it can't do one thing. And this thing can help you attract good things into your life or can absolutely demolish your health. What is that one thing it can't do? It can't distinguish between a real event and something you merely think about. Sounds absolutely ridiculous, right? यही बात मैंने अभी बताई कि बस केवल एक बात है, अवचेतन रियल
और इमेजिनेशन, कल्पना और सच के बीच का भेद नहीं कर सकता। बस बाकी तो वो भयंकर शक्तिशाली है क्योंकि वो सरल है, उसकी हर इंफॉर्मेशन ट्रुथ है। What happens when you have a nightmare? You wake up, your heart is pounding, you're sweating, and you're anxious beyond words. The nightmare existed in your mind. You weren't in any real danger at all, but your mind didn't know that. You physiologically reacted as if the nightmare was actually taking place in reality. अब देखिए वही बात मैंने बोली कि सपने में जो घट रहा था, आपका माइंड उसे सच जानता है, उसके लिए हिसाब से वो कल्पना नहीं है, वो कोई स्वप्न नहीं है, स्वप्न भी सच है। तो अचेतन के अंदर की हर चीज सच है। इसीलिए हम आगे ये सीखेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे क्योंकि वही सच होने लगेंगी। There was a study conducted where a doctor hooked up an elite athlete, a professional skier, to a device that measured the athlete's muscle fibers. He told the skier to merely think about skiing down a hill without moving a muscle. The act of thinking about skiing down the hill actually made the same muscle fibers that would have actually fired off if he were to be actually skiing fire off from thoughts. This has been demonstrated time after time with the placebo effect. Group A suffering from a particular illness gets prescribed a pharmaceutical FDA-approved drug specifically designed to treat that illness. Group B suffering from the same illness gets a sugar pill, thinking it's real medication. Both groups get cured. In fact, the New England Journal of Medicine published a study involving two groups suffering from the same degenerative knee disorder. Group A had a surgery designed to scope out the knee and relieve the symptoms of the disorder. Group B, with the permission of the family, had a fake surgery, a placebo surgery, thinking that they had a real surgery. Only हम इस बात को आई थिंक समझ पा रहे होंगे, ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, इसके अंदर कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिन के नाम पे शुगर की पिल्स दी गई और उन्हें बोला गया कि आप इसको लेंगे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, और उनको महसूस हुआ कि भाई ये तो पावरफुल मेडिसिन है, मुझे दवाई दी गई है, वो दवाई समझ के लेते गए। तो आप देखिए कि कैसे अपने आप ही माइंड को लगा कि अब मेरे को दवाई मिल रही है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे ही इस केस में दिखा रहे हैं कि एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करा कि हमने आपके लिए सर्जरी करी है पर करी नहीं और वो बंदे को लगने लगा मैं ठीक हो गया। तो जिसको हम ये साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स बोलते हैं, यहाँ पर ये हमारा सबकॉन्शियस है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत मेजर काम अंदर ही हो रहे होते हैं। 3 small incisions were made in the kneecap, but no real surgery was performed. Both groups reported that the surgery was a success. In fact, researchers are suggesting that a minimum of 1/3 of all medical treatment, including surgery, is due to the belief that the treatment is going to work. अब आप सोचिए कि पेशेंट को अगर अंतर मन में, अवचेतन में ये धारणा हो कि मैं जा रहा हूं, मैं ठीक होके आऊंगा, तो वो ठीक होके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। और अंतर मन में जो अवचेतन है, जिसको हम गुरु बोलते हैं, वहां ये धारणा हो कि जहां मैं जा रहा हूं वो तो डॉक्टर साहब सबको मार ही देते हैं, बचूंगा नहीं मैं, तो चांसेस सक्सेस होने के कम हो जाएंगे। तो ये सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है, आपके अंदर की अवचेतन की प्रोग्रामिंग है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अंदर क्या धारणाएं बना के हम बैठे हैं वो ही हमारे जीवन में बाहर दिखेगा। जो भी हमने अपनी धारणा बनाई है, जिसको हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होगी। Placebo effect. Most people don't realize that there is also something called the nocebo effect. It's practically the opposite of the placebo effect. The mind, instead of curing illness, contributes to illness. That's what a hypochondriac is. Their belief that they're going to develop a disease actually causes them to experience the symptoms of it. Whatever belief you hold in your subconscious mind will be. ये भी बड़ी मजेदार स्थिति है कि अगर आप ये बार बार बोलो हाँ जी मैं क्या बच जाऊंगा, हमें तो 100% डायबिटीज होगी, हमें तो 100% ही होगा जी, ये तो हमारे घर में होता ही है,
जितना ज्यादा आप अपने अंतर मन में, सबकॉन्शियस में, अवचेतन के अंदर किसी भी डिजीज के बारे में कल्पना बैठाओगे, आप कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उसके आने के चांसेस हायर हो जाएंगे। आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस जो आपकी धारणाएं आपके अंदर बना रहा है, वो कितनी बड़ी जड़ की तरह काम करती है। और पेड़ की जड़ दिखती नहीं है, पर पेड़ के खड़े रहने का बहुत बड़ा दारोमदार उन जड़ों पर है। अगर जड़ें कमजोर हैं तो पेड़ गिर जाएगा। उसी तरह आपका अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड अगर नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है तो जीवन में सफरिंग यानी तकलीफें, दर्द, प्रॉब्लम ज्यादा होंगे। जो लोग पॉजिटिव सब प्रोग्रामिंग में होते हैं वो अपनी लाइफ में आसानी, प्रॉब्लम उनकी लाइफ में भी आती है लेकिन वो सॉर्ट करते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड पूरी तरह तैयार होता है कि हर परिस्थिति को मैं हैंडल कर सकता हूं। Become your reality. Bottom line. That's how hypnosis works. The hypnotist implants the idea in the back of their subject's mind, and the subject experiences whatever they hold there. If they hold a belief that there's a spider on their arm, their eyes actually see a spider on their arm. An amazing demonstration occurs when the hypnotist walks towards his subject with his finger extended. He tells the subject that his finger is hot and burning. The hypnotist slowly touches the subject on their arm, and a blister actually forms in the exact place that the finger touched. Now, this is crucial. आप देखिए कितनी गजब बात बताई है कि कोई अगर कल्पना कर रहा है कि मेरे हाथ पे कोई केकड़ा बैठा हुआ है और वो खिसक रहा है, और अगर आप पूरी तन्मयता से इसको कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, अब चेतन मन के हिसाब से हर कल्पना भी सच है। तो अगर आप ये कर रहे हैं, तो ये केस इन्होंने बताया कि अगर आपने उसको बड़ी तन्मयता से करा है तो आप उसकी मूवमेंट महसूस कर सकेंगे, उसका हिलना महसूस करेंगे। और कुछ केस में, इस केस में दिखा रहे हैं कि आपको ये भी महसूस हो सकता है कि मेरे यहाँ कहीं देखो ये निशान है, उसने काटा है, उसने स्क्रैच मारा है। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि सबकॉन्शियस वो फिजिकल चेंजेस भी दिखा सकता है, क्योंकि वो शरीर, वो मास्टर है, वो अंदर गुरु है, वो शरीर को गवर्न करता है, तो शारीरिक बदलाव वो दिखा सकता है। Crucial to understand in all healing. Free will, as we understand it, is practically an illusion. In fact, 2 to 4% of the time, you decide what you want to do. You actually make the decision. 96 to 98% of the time, you don't. You're on autopilot. Your subconscious mind controls your decisions 96 to 98% of the time. Don't believe me? Do you like ice cream? If you do, snap your fingers and stop liking it. Do you enjoy watching sports? Snap your... हम इसको आगे भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी तक हमने नोसीबो प्लोसीबो इफेक्ट पे बात करी। मैं चाहता हूँ गुंजन 2 मिनट कुछ बात करे, बिकॉज शी इज अ मेडिकल डॉक्टर एंड वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर चुकी है इन चीजों को। तो प्लीज शेयर एनीथिंग फॉर 2 मिनट्स एंड देन वील प्रोसीड विद मेडिटेशन। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, या ओके। सो प्लेसिबो इफेक्ट इज मतलब कि आप एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, सिर्फ आप उनको दे रहे हो दवाई कह के कि उस चीज की, आप डिजीज के लिए आप मेडिसिन दे रहे हो, बट एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड है वो नहीं देते। बट जस्ट बिकॉज साइकोलॉजिकली पेशेंट को दवाई चाहिए, जैसे कि कई सारे बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि जब तक दवाई नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर के गए हैं तो उन्हें आराम नहीं मिलेगा, बट डॉक्टर को पता है कि ये सिर्फ स्ट्रेस है और कोई बीमारी नहीं है। तो मेडिकेशन के नाम पे जैसे मल्टीविटामिन दे देंगे, कोई सप्लीमेंट दे देंगे, या जैसे शुगर पिल दे दी, तो उससे और पेशेंट को बोल दिया कि आपकी दवाई जो है हमने थोड़ा बढ़ा के दे दी है, तो पेशेंट को लगेगा आपकी बार डॉक्टर साहब ने दवाई बदली है तो अब आराम आएगा, आपकी बदली है दवाई तो पिछली वाली से ये ज्यादा अच्छी है। तो साइकोलॉजिकली वहीं से आराम आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई बदल दी और उन्हें दवाई मिल गई। और जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, वहां पे जहाँ मैं वर्क करती थी, जीरियाट्रिक पेशेंट्स जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनको ज्यादातर यही किया जाता था कि उनको मेडिकेशंस कम दी जाती थी, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस आपस में सब क्रॉस रिएक्ट करती हैं, तो उनको प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो मतलब कि उसका सब्स्टिट्यूट दे दिया जाता है। जैसे हम अपने प्रोफेशन में, फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड एक मोडालिटी होती है, तो उसे हम ऑन नहीं करते थे। पेशेंट को चाहिए तो बस वो ठंडा ठंडा लग रहा है, बस जेल लगा के ऑन नहीं करते थे, और ऐसे ऐसे मूव कर दिया, और पेशेंट बोलता था कल से सूजन आज बहुत कम हुई है, आज बहुत आराम आया है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है।
तो साइकोलॉजिकली आपकी बातों से ही पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, बट मेडिकेशन चाहिए होती है इसीलिए दे देते हैं। You want to say something about nocebo effect also? No, nothing. They sound very funny. प्लेसिबो एंड नोसिबो इफेक्ट। अब सोचिए कि यहाँ आप जो धारणा बना रहे हो वो जीवन में हो रही है, इसीलिए धारणा केवल इतनी सजग धारणाएं पॉजिटिविटी की होनी चाहिए कि मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, खुश हूँ। बेशक आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं, क्योंकि जैसे और आप ये बोलते हो मैं किसी भी परिस्थिति में बाहर निकल कर आ सकता हूँ, तो जैसे जैसे आप अपनी धारणाएं बनाते हो वैसा वैसा आप देखते हो कि आप कर पा रहे हो। और जो इंसान डिग्गी ढा देता है बड़ी जल्दी कि जी हमारा क्या है, कई ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए जाएंगे, डॉक्टर साहब जिंदा बचाऊंगा, वो कह रहे कैसी बात कर रहे हो, एक दिन में 20-20 होते हैं, सारे ठीक जाते हैं। तो मतलब ये धारणाएं हैं जीवन में, अवचेतन के अंदर का डेटा है, इंफॉर्मेशंस है और प्रोग्रामिंग है जो लाइफ में एक मेजर बदलाव लाने की क्षमता रखती है। ये तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो हमने इस वीडियो में शेयर करे, वीडियो लंबा है। तो एक बात हमने आज क्या सीखी, जब किसी भी चीज को हम बार बार दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम उसके लिए प्रोग्राम होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, हमें माइंडफुलनेस सीखनी चाहिए, एकाग्रता सीखनी चाहिए। जो लोग आज नहीं आए हैं क्लास में और कोई मेडिकल रीजन नहीं है तो हम उन्हें रिमूव कर देंगे आज, और जैसे जैसे एब्सेंटिज्म होता जाएगा हम लोग रिमूवल करते जाएंगे। ठीक है। अगली क्लास में जो सबसे पहले 10 मिनट हैं 6:20 से